Yeah, Uh, right. uh, Arvind, also please use a little bit Hindi in between while you are describing, because not required to always speak in English. Okay, thank you. So stock fundamentals, I mean, फॉर मी फंडामेंटल स्टडी करने के लिए आपके पास द बेसिक स्ट्रक्चर इज कि मार्केट कैप स्टॉक का, व्हाट इज द मार्केट कैप ऑफ द स्टॉक, ओके, देन स्टॉक का पी अभी क्या पी है, इफ यू कंपेयर दैट विद द सेम इंडस्ट्री स्टॉक्स, यू कैन सी what is the PE of that stock, at which PE the stock is being trading right now. You can compare that. You can compare with the stocks old P. I mean, you can see the 3-year-old P, 5-year-old P, then see whether it has been increasing or decreasing. If it is been increasing, it means there is something which is there in the stock. That's why the stock has been re-rating. Otherwise, if that is lower, I mean that is decreasing in decreasing trend, or if some stocks are trading below the industry average, then it means those stocks are the laggard stocks. Okay, if those are trading at the higher valuations, it means those are the leader stocks in that particular industry. So we can check those as well. I mean, जब मैं स्टडी करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि किसी स्टॉक का करंट पी क्या है, अभी उस इंडस्ट्री का पी क्या चल रहा है, ठीक है, वो स्टॉक 3 साल पहले किस पी, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले किस पी पे ट्रेड कर रहा था, ठीक है. सो वी कैन गो इन डिटेल कि सी कि क्या ऐसा है स्टॉक में कि वो री रेट हो रहा है. आई मीन, सो अपने को कौन सा लेना है, जो बढ़ रहा है. बढ़ेगा कौन सा, जिसका पी बढ़ रहा होगा, सिंपल. ओके, सो just to check, I have put these three. Let me take the pointers as well. 1 minute. Yeah, so it's all about the P. Then ROC and ROE. So ROCE and ROE में एक basic difference है कि ROC होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड में आपका इक्विटी कैपिटल प्लस डेब्ट कैपिटल दोनों आता है. सो कंपनी दोनों पैसा लगा के कितना कमा रही है, दैट इज कॉल्ड ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, द टोटल कैपिटल विच इज बीन एम्प्लॉयड बाय द कंपनी. ओके, ROE इज कि कंपनी सिर्फ जो उसका शेयर होल्डर्स का जो फंड है, जो इक्विटी फंड है, उस पैसे पे भी कितना कमा रही है, दैट इज ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी. ओके, then we see promoter holding. There's lots of things in market कि promoter holding काफी कम है और कंपनी का promoter holding कम है, तो it means कि promoter are not interested in the company in future. So there are so many things. Promoter are selling in the market, then people say कि promoter बेच रहा है, it means वो future में उसको लगता ही नहीं कि company will grow, right? Same as like कि promoter खरीद रहा है तो people think कि company अच्छा करेगी इसीलिए खरीद रहा है. But there can be other reasons as well. So promoter holding, sometimes you see कि promoter holding तो कम है, but if you go into the detail, you will see that there are FII who has invested, there are DIIs, domestic institutional investors जिन्होंने उसमें invest किया है, there are big individual investors as well who has invested. There are some examples as well to that. So if you see that, then you will see कि इतना सारा institutional ने उसमें invest किया हुआ है, तो it can be a good company. So everything is there, right? So we need to see that जब हम स्टॉक फंडामेंटल्स देखेंगे, ठीक है. देन वी सी कि स्टॉक प्लेज क्या किया हुआ है. प्लेज इन द सेंस कि प्रमोटर ने उसको प्लेज करके, और whether he is raising fund from that pledge, whether he has not the liquidity and he has taken some loan for that against that pledge. So that is one another part of that. Then we'll see financials. एक और चीज है future growth. So how company is doing currently, what they did in past and what they are doing in future. I mean, are they expanding, whether they have something for future expansions. So we need to check that as well while studying the stock fundamentals. Okay, then obviously the red flags are also there, we can see in detail later on. Then the financials, coming to the profit and loss and balance sheet part. If we start from starting, I mean from top of the P&L, we will see the revenue. First item is revenue कि revenue company का क्या है, कितना growth कर रहा है, whether it is growing or degrowing, we can see that, वो हम देख सकते हैं.
देन वी विल सी कि मार्जिन्स कैसा है, एक्सपेंशन कर रहा है, मार्जिन्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं. मार्जिन्स इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ओपीएम. सो व्हाट आर द मार्जिन्स, पिछले 1-2 साल में मार्जिन बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है. अगर मार्जिन बढ़ रहा है, इंडस्ट्री के जो बाकी कंपटीटर्स हैं उनका मार्जिन क्या है, ठीक है. फिर मार्जिन्स मेरा ग्रो कर रहा है, वी कैन सी कि क्या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जिसमें मेरा मार्जिन ग्रो कर रहा है. बिकॉज हम जो स्टडी करते हैं बहुत बार क्या होता है कि हम इन जनरल हम देख लेते हैं कि मार्जिन ठीक है, मार्जिन पिछले साल इतना था अभी बढ़ गया है. हम ये नहीं देखते कि बढ़ने का रीजन क्या है. अगर मार्जिन में एक शार्प जंप है, 16% से सडनली 20% हो गया, वी शुड सी दैट कि क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन दैट मार्जिन इज एक्सपेंडिंग. सो मार्जिन अगर बढ़ रहा है तो उसका प्रोडक्ट रेंज में आप जाके देख सकते हो कि कंपनी ने ऐसा क्या किया कि मार्जिन बढ़ गया. कुछ नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है, कुछ पुराने में कुछ समथिंग सम न्यू टेक्नोलॉजी दे आर ब्रिंगिंग इन. सो वी कैन सी दैट. ओके, in stock fundamental, what I have learned is कि whenever you see something big means कि कुछ हाई जंप हुआ, रेवेन्यू बढ़ गया, सडनली 50% बढ़ गया लास्ट ईयर से, ठीक है, सडनली मार्जिन बढ़ गया, वी नीड टू स्टडी दोज कंपनीज, वी नीड टू सी व्हाट इज बिहाइंड दैट. और हम अगर वो स्टडी करेंगे डेफिनेटली हम थोड़े लेट होंगे, बिकॉज तब तक तो शेयर काफी चल चुका होगा, बट इट डजंट मीन कि वो आगे नहीं चलेगा, राइट. सो हमको उसको स्टडी करना चाहिए. whenever you see a sharp jump in numbers, whether revenue, whether OPM, whether EPS, we should see that in detail. कई बार हाँ, अब आते हैं EPS पे. EPS में कई बार क्या होगा, आप जब फाइनेंशियल P&L देख रहे होगे तो आप देखोगे कि बहुत EPS बढ़ गया एक साथ, बट आपको चेक करना है whether it is increasing by the operating activities और कंपनी has sold something, because कंपनी कुछ बेचेगी तभी भी वो अदर इनकम का पार्ट होता है, and that flows to EPS. So we need to see that whether it is increasing because of the other income or whether it is increasing because of the company's operating activities. So we need to see that. Then there are certain short-term liquidity and long-term liquidity ratios we should check. One is कि भाई कंपनी का सिचुएशन क्या है, करंट में उसके हाथ में पैसा है या नहीं है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी कैसा है, या हैंड टू माउथ ही है. हैंड टू माउथ इन द सेंस कि जितना आ रहा है आगे पे कर आगे काम चला रहे हैं, राइट. या ऐसा हो सकता है कि कंपनी के पास बहुत अच्छा करंट एसेट्स हैं. करंट एसेट्स आर बेसिकली, करंट रेशो इज द एसेट, आई मीन it's a ratio of current assets and current liabilities. Current assets or current liabilities means any such asset which can be easily convertible into cash और cash equivalent. मतलब आपका पैसा है, आप उसको फटाफट बेच के आपका स्टॉक है या कुछ भी डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनको कलेक्शन कर सकते हो या पेमेंट कर सकते हो. सो विच कैन बी कन्वर्टेड क्विकली इनटू कैश. ओके, सो दैट इज, those are the assets and liabilities which are called current assets and current liabilities. We need to see the ratio of that current asset and current liabilities. अगर मेरे पास, सिंपल एग्जांपल, मेरे पास 150 रुपये का लाइबिलिटी है, पॉकेट में सिर्फ 100 रुपया है, तो मेरे को 50 रुपये कहीं से तो अरेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि अदरवाइज 50 रुपये वाला मांगेगा मेरे से, भाई पैसा दो. तो सिंपल रेशो. तो रेशो कितना हुआ, रेशो हुआ कि मेरे पास 150 का लाइबिलिटी और 100 ऊपर, ठीक है, तो इट इज अराउंड 0.7%, राइट. So 0.7%, it is a 0.7 ratio. So current ratio is that. Then we need to see the interest coverage ratio. आपने लोन ले रखा है, ठीक है, अच्छी बात है, बट आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या है. इंटरेस्ट कवरेज रेशो मतलब आप पूरा साल में जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उसमें से कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं. फॉर एन एग्जाम्पल कि मैंने 100 रुपया प्रॉफिट कमाया, ठीक है, और मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ सिर्फ 10 रुपया. सो मैं आई कैन से कि मेरे पास अच्छे से मेरा इंटरेस्ट कवरेज रेशो है. मैं देख सकता हूँ कि ये कंपनी अपना जो ईयरली इंटरेस्ट है उसको इजीली पे कर सकती है, ठीक है. सो हायर द इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इट इज बेटर फॉर ए कंपनी. अगर मैं देखता हूँ कि मेरा प्रॉफिट ही 5 रुपये है बट 10 रुपये इंटरेस्ट पे करना है, इट मीन्स देयर इज ए प्रॉब्लम इन लिक्विडिटी इन दैट कंपनी, ठीक है. सो वी नीड टू चेक द, for short-term liquidity, we need to see the current ratio and interest coverage ratio. Okay. For long-term liquidity, we need to see the debt to equity ratio. मेरे पास 100 ही रुपये जेब में, लोन ले रखा है 200 रुपये का, तो मेरे को देखना पड़ेगा, इट इज मेरा डेट टू इक्विटी रेशो इज 2. सो मेरे से मतलब मैंने जितना पैसा है उससे डबल लोन ले रखा है, तो कभी भी मैं कोलैप्स हो सकता हूँ. मेरे पास
एसेट ही उतने रुपए की है और मैं डबल लोन लेके बैठा हूँ, तो आई कैन कोलैप्स एनी टाइम, राइट? सो वी नीड टू सी दैट एज वेल फॉर द लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी। ओके, कुछ शेयर्स हम देखेंगे इन आगे कि कहाँ क्या कैसे है, कैसे रीड करना है उनको, ठीक है? हाँ, सो इंडस्ट्री का जो वी डिस्कस इन अरविंद फर्स्ट जी, स्लाइड। यस यस, लास्ट स्लाइड पे प्लीज आ जाइए। ओके, हाँ जी। यहाँ पे लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी को एक बार फिर से बोल दीजिए। और इन्होंने रेज हैंड किया था किसी एक ने, मतलब किन्हीं Okay. को कुछ क्वेश्चन पूछना था, एक बार ले लीजिए। हाँ, तो लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी का मैं बता देता हूँ। सो लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी का क्या है कि देखिए, दो तरह का कंपनी लोन लेती है। एक तो लोन लेती है वर्किंग लोन अगेंस्ट वर्किंग कैपिटल, जो कि उसका शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए होता है, जो आपको पता चल जाएगा अगर होगा तो करंट रेशो से, ठीक है? जब आप करंट रेशो देखेंगे कि उसकी करंट एसेट क्या है और करंट लाइबिलिटी क्या है, वो मैं अभी दिखाऊंगा। कैसे देखेंगे वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। इवन आई कैन शो राइट अवे। एक मैं अभी दिखाता हूँ, एक बार बता देता हूँ। लेट मी शो यू एज वेल। ओके, सो करंट रेशो हम उससे आइडेंटिफाई करते हैं कि शॉर्ट टर्म में कंपनी का लिक्विडिटी कैसा है, ठीक है? कि कंपनी हैंड टू माउथ है या कंपनी के पास अच्छे से पैसा है, इजीली दे कैन पे देयर लाइबिलिटीज, ठीक है? सो दैट इज कॉल्ड द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। नाउ कम्स टू द लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी। लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी का क्या है कि कंपनी ने अदर देन वर्किंग कैपिटल कुछ लोन ले रखे हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म लोन्स मतलब वो उसको अभी पे नहीं करने हैं, फ्यूचर में, इस साल में पे नहीं करने हैं, नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर कुछ भी लोन उठा रखा है, बॉन्ड्स पे ले रखा है, कुछ वॉट एवर इट इज। नाउ वी नीड टू सी कि अपना जो डेप्ट है, whether the debt, whatever loan the company has taken, whether the debt is more than the equity. I mean 100 रुपया मेरे पास इक्विटी है और 100 का ही लोन ले रखा है। इट मीन्स मैं बस ऐसी जगह पे हूँ जहाँ थोड़ा भी ऊपर नीचे हिला तो आई कैन फॉल, राइट? तो हमको देखना है कि डेप्ट टू इक्विटी क्या होना चाहिए। आई मीन लोअर द डेप्ट टू इक्विटी इज बेटर फॉर द कंपनी। अगर डेप्ट टू इक्विटी 1:1 है तो इसका मतलब जितना मेरे पास इक्विटी है उतना ही मैंने लोन भी ले रखा है, ठीक है? अगर मेरे पास 0.1 है, मतलब 10 का एग्जांपल लूँ अगेन, 10 रुपया मैंने लोन लिया है और 100 रुपये का इक्विटी है, तो आई कैन इजीली पे दैट ऑफ बिकॉज इट जस्ट 10% ऑफ माई इक्विटी, राइट? So for long term liquidity we need to see the debt to equity. Okay, now sometimes कंपनी अपना एक्सपेंशन के लिए लोन लेता है, ठीक है? हम वो भी आराम से देख सकते हैं कि कंपनी का सिबिप चल रहा है, अगर कुछ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, वी कैन इजीली सी दैट। अगर मेरा बोरोइंग बढ़ रहा है और मेरा साथ में कैपेक्स एक्सपेंशन भी हो रहा है, इट मीन्स वी कैन सी कि कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, उसके लिए लोन ले रही है। देन I need to check whether the company is able to pay the interest every year or not. So we need to check the interest coverage ratio in that part कि उसका interest coverage ratio क्या है, ठीक है? So that is the debt to equity and interest coverage ratio. Any other question, Piyush ji? Somebody has raised any questions on that? इन्हीं को कोई क्वेश्चन है इस स्लाइड पे? Arvind, one question. The debt Yeah. to equity, what is the percentage you see is think that is the most comfortable for everybody, and where there is a red flag? Okay. So I think obviously everyone says, I mean lower the better, but I think 0.5 or 0.6 will be better. If lower than that, it's more. I mean it's better. अगर उससे कम होता है तो 0.5 and 0.6 is better. Thank you. In some cases you can see even it is 0.8 and 0.9, but we need to see कि बाकी फिर factors हमको देखने पड़ेंगे कि क्या हो रहा है. We can take some examples, okay? I'll take some examples after second slide, okay? हेलो सर। Yes. अगर किसी कंपनी का पी हाई है लेकिन उसका फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस ठीक है तो उसको हम ले सकते हैं। उसका ultimately आप ultimately मेरा मानना in my opinion जिसका पी ज्यादा है वो अच्छा ही होता है, ठीक है? इट डजंट मीन कि पी ज्यादा है तो एक परसेप्शन होता है सिंपल कि पी ज्यादा है तो बहुत महंगा है, इसको नहीं लेना चाहिए, बट वही लीडर होते हैं मार्केट के और वही पैसा वही लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करते हैं। वो एवेन्यू सुपरमार्ट को लिया था मैं उसको देखा, उसका पी हाई है लेकिन उसका फ्यूचर ग्रोथ सब ठीक है भाई, तो वो प्रॉफिट भी ठीक दे रहा है, इसलिए
मैंने हाँ, सो कहीं वही, देखा था कि सो पी हाई पी पी को नहीं लेना चाहिए बोल रहे थे, वो लोअर पी को कंपेयर हाँ, करो, उसका पेयर कंपैरिजन सो और सो जो सो इसका। सो इट्स हाँ जी, हाँ जी, यस यस, बताइए। हाँ, तो let let जिसका me पी let लो me होगा। share one in हाँ, सर ओके। correct. So let me share one interesting thing. I mean, lot of people talk about that. Uh, where is that? So yes, it is. सो मैं एक अभी शेयर करता हूँ, बहुत एक इंटरेस्टिंग है अपना बालाजी अमाइन एंड अल्काइल अमाइंस, राइट? बहुत लोग उसका करते हैं, यार ये तो इतना चल गया, क्या हो गया? लेट मी शो समथिंग, ओके? मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? क्लासिक एग्जांपल है वो। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? हेलो? यस Yes, यस sir. यस। Yes, sir. हाँ, सो मैं जनरली स्क्रीनर से अपना फंडामेंटल्स देखता हूँ, स्क्रीनर से भी देखता हूँ, MSI से भी देखता हूँ, ठीक है? मैंने एक अपने लिए ये बना रखा है, एनीबडी कैन मेक फॉर देमसेल्फ। ये बहुत अच्छा वेबसाइट है और बड़ा इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है? सो अगर बालाजी माइन का एग्जांपल लें, ठीक है? अभी दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 52 PE, राइट? आई कैन सी द इंडस्ट्री PE विच इज जस्ट 26, ओके? देन आई कैन सी द 3-year PE। तो इस स्टॉक का 3 साल का पहले का PE था 13, सिर्फ 13, ठीक है? और स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 52 PE राइट नाउ, ठीक है? ROCE is 35 and ROE is 30. Now let me again other than PE एक छोटा सा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। देखिए ROE 30 है, ठीक है? और ROCE 35 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि कंपनी ने जो अपना इक्विटी में पैसा लगाया, इक्विटी जो लगाया हुआ है उस पर 30% कमा रहा है, बट कंपनी डेप्ट लेके ओवरऑल पैसे पे 35% कमा रहा है। इसका मतलब सिंपल ये है कि जो कंपनी ने लोन लिया है दे आर यूटिलाइजिंग इट बेटर। आप समझे? मतलब 30% आप इक्विटी पे कमा रहे हो, बट जब आपके पास और पैसा आया आपने उसको और अच्छे से यूटिलाइज किया। योर ROCE इज मोर देन ROE। इफ योर ROCE इज मोर देन ROE, it means the company is utilizing the debt fund better. Okay, one thing. Now other thing is 3-year PE, 3 साल पहले का PE कितना था? 13, और आज PE कितना है? 52। कंपनी 4 गुना PE हो गया कंपनी का कितने दिनों में? जस्ट within I mean last year it was trading around 600 rupees, so and now it is trading around 5000 rupees, ठीक है? अब क्यों हुआ उस पर भी आते हैं, ठीक है? अगर इस समरी को आप देखोगे तो यू कैन सी इजीली कि 3 साल पहले उसका एसेट था 316 करोड़ का, currently asset are 543. See, I am not going into the details of the technicals like कि बालाजी अमाइन किस में है, कहाँ है, क्या कर रही है, फ्यूचर में क्या होगा, प्रोडक्टों का क्या होगा, लीव इट। आप बस इतना देखो, इतना भी देखोगे तो यू विल गेट ए फेयर आइडिया कि कंपनी क्या कर रही है और कहाँ जा रही है, ठीक है ना? डेब्ट टू इक्विटी इज 0.14, ठीक है? एंड करंट रेशो इज 2.82। करंट रेशो मतलब उसके पास अभी, अगर मैं इस एग्जांपल को लूँ 100 रुपए का, तो उसके पास 280 रुपए कैश है एज कंपेयर टू 100 रुपीज लाइबिलिटी। दिस इज करंट रेशो, ठीक है? प्रमोटर होल्डिंग इज 53%, उस पर भी आएंगे अभी। नाउ कमिंग टू these are like अल्काइल अमाइन, यू कैन सी कि वो 62 के PE पे ट्रेड कर रहा है, बालाजी अमाइन इज 52। वी कैन सी कि क्या हो रहा है। अभी आगे चलते हैं। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, P&L। अब आप एक सिंपल देखिए, सेल्स 850, 940, 935 एंड सडनली देयर इज ह्यूज जंप, 900 करोड़ से सीधा 1300 करोड़ हो गया। नाउ वी नीड टू स्टडी दिस कंपनी। ऐसा क्या हुआ इस कंपनी में कि ये 900 करोड़ से 1300 करोड़ हो गया, ठीक है? फिर आपको देखना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है, 19%, अब सडनली 29% हो गया। तो यू नीड टू चेक भाई हुआ क्या है। यू कैन गो इनटू द प्रोडक्ट सेगमेंट, यू कैन सी कि कौन सा है भाई। अमाइंस डिवीजन है जो 950 करोड़ से 1400 करोड़ जिसका टर्नओवर हो गया, ठीक है? और उसका देन यू नीड टू सी कि मार्जिन देखिए 19% से
16 हुआ, बट यहाँ पे 26 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब बालाजी अमाइन का जितना भी सेगमेंट है, देयर इज अमाइन डिवीजन जो कि बहुत अच्छा कर रही है, ठीक है, in very simple language. Now closing it. So then we need to see कि मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है, बहुत अच्छा है, whether that is flowing to my EPS or not. मेरे को वो भी देखना पड़ेगा EPS में फ्लो करना है या नहीं। EPS में कब फ्लो करेगा? जब आपका इंटरेस्ट कॉस्ट भी लो होगा। अगर इंटरेस्ट कॉस्ट मेरा हाई होगा वो EPS में फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। इन दिस एग्जाम्पल इफ आई टेक द इंटरेस्ट कवरेज रेशो, व्हाट आई कैन टेक कि मेरा 238 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, 18 करोड़ का मेरा इंटरेस्ट का लाइबिलिटी है एनुअल। सो आई कैन सी कि मेरा ये इट इज अराउंड 15 टाइम्स, राइट, 180 एंड इट इज अराउंड नॉट 15, 13 टाइम्स, ओके। ये 13 टाइम मेरा इंटरेस्ट कवरेज है, कंपनी कैन इजीली डू दैट, ठीक है, इजीली पे ऑफ। सो दिस इज अबाउट द P&L पार्ट। नाउ कमिंग टू द बैलेंस शीट। अब आप बैलेंस शीट में देखेंगे बड़ा सिंपल कि जो यहाँ पे रेवेन्यू 21 में बढ़ा है, ये क्यों बढ़ा? आप आइए यहाँ पे 20 में आइए। 20 में अगर आप आते हो तो कंपनी ने 18 से एक्सपेंशन शुरू किया। 18 में 123 करोड़ का कुछ सिविप किया जो 19 में भी चलता रहा, और 20 में आके कंपनी का जो सिविप था वो कन्वर्ट हो गया कैपेक्स में। कैसे कन्वर्ट हो गया कि कंपनी का जो ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा था वो कंपनी का प्लांट इंस्टॉल हो गया, चालू हो गया। ये सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ आपको। सो फ्रॉम सिविप दैट इज मूव टू फिक्स एसेट्स, ओके। अब आप देखो 21 में फिक्स एसेट 320 करोड़ से सीधा 573 करोड़ का हो गया इन 20, और ये सडनली 573 जब 20 में हुआ तो यू कैन सी द 21 1300 करोड़, ठीक है। सो अगर हम नंबर्स में थोड़ा जाएंगे, देखेंगे, द पॉइंट इज कि जो रिटेल इन्वेस्टर के साथ प्रॉब्लम होता है कि वो कुछ नंबर्स वगैरह देखते नहीं है। वो सिंपल क्या सोचते हैं कि भाई कोई बता दे और मैं ले लूँ, वो पैसा बन जाए, ठीक है। बट जो ये मैं बता रहा हूँ अभी, इट इज़ वेरी इजी, इट विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। आप बस सिंपल कुछ नंबर्स देखोगे। अब आप यहाँ पे देखिए, बोरोइंग सडनली 150 से 227 हुआ, 227 से 260 करोड़ बोरोइंग हुआ। दिस इज लॉन्ग टर्म डेप्ट जो हम बात कर रहे थे ना, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो का। सो दिस इज लॉन्ग टर्म डेप्ट, ओके, एंड दिस इज शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ठीक है। तो 260 हुआ, बट 260 क्यों हुआ? आप देख सकते हो कि कंपनी ने 320 से 573 करोड़ का कैपेक्स किया। इसका मतलब कंपनी ने लोन जो लिया था वो कैपेक्स करने के लिए लोन लिया था, ठीक है। अगर मेरा कोई कैपेक्स नहीं हो रहा है और फिर भी लोन बढ़ रहा है, देन देयर इज अ रेड फ्लैग कि कुछ मैं एक्सपेंशन नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, और मेरा लोन बढ़ता जा रहा है, मेरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब कंपनी क्या कर रही है? पैसे को लेके अपना शॉर्ट टर्म में भी यूज कर सकती है, राइट, उसको यूज कर रही है जैसे भी है, ठीक है। देन आप 21 में देखोगे तो सडनली कंपनी ने पे ऑफ कर दिया अपना आधे से ज़्यादा लोन, पे ऑफ भी कर दिया, एंड नाउ पैरेलली अनदर एक्सपेंशन इन प्लेस। ये बिल्कुल सिंपल नंबर्स है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल कि क्या एक्सपेंशन हो रहा है, क्या प्रोडक्ट का एक्सपेंशन हो रहा है। अगर और डिटेल में जाना है तो आई नीड टू गो इनटू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी। जैसे ही मेरा ये 269 था, मैं यहाँ पे मार्च 19 का कंपनी का एनुअल रिपोर्ट जाके देखता कि भाई ये 269 का क्या हो रहा है। सडनली कंपनी इज डूइंग ए कैपेक्स अराउंड इट इज एग्जिस्टिंग कैपेसिटी के बराबर कंपनी कैपेक्स कर रही है। तो वाटर क्या कर रही है, क्या करने वाली है? तो अगर मैं ये स्टडी 19 में करके बैठा होता तो जब मैं इस शेयर को, जब मार्च 20 का मेरे पास फाइनेंशियल्स आए थे, या 19 के बाद मेरे को जब कंपनी अपना स्टेटमेंट फाइल करती है, जब भी कोई भी कैपेक्स जैसे कैपेसिटी चालू होती है जब भी, तो कंपनी फाइल इन BSE और NSE दोनों में फाइल करता है, ठीक है। सो वी कैन टेक कि भैया वो फाइल कर दिया, इट मीन्स कैपेक्स इंस्टॉल हो गया, प्लांट चालू हो गया। तब हम वी शुड बी रेडी फॉर ए ब्रेकआउट, जो कि इसी में हुआ लास्ट ईयर, राइट, मई और जून के आसपास, ठीक है। देन कमिंग टू कैपेक्स पार्ट। सो अभी भी कंपनी, अब पीपल से कि यार ये तो 5000 का शेयर हो गया, ये तो 600 रुपये का था लास्ट ईयर, 5000 का हो गया, और कितना बढ़ेगा? तो आप देखिए, अगर आप सब लोग हैं यहाँ पे, देख के ही बता सकते हैं कि कंपनी ने डेप्ट रिड्यूस कर दिया, कंपनी और एक्सपेंशन कर रही है, कंपनी के पास लोन ऑलमोस्ट खत्म है, कंपनी का
ROC इतना बढ़ रहा है, ROE से भी ज़्यादा बढ़ रहा है। कंपनी का शॉर्ट टर्म का लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है। कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग भी ठीक ही है, 50% से ऊपर प्रमोटर होल्डिंग है, ठीक है। और री रेट तो कंपनी हो ही रही है। सो व्हाट एल्स यू नीड, ठीक है। तो इसमें फिर डरने का जरूरत नहीं है। यू कैन सी, हाँ, आप एंट्री बेटर एंट्री करने के लिए यू कैन सी द टेक्निकल पार्ट ऑफ टेक्निकल्स की कहाँ पे अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है, तो आई कैन बाय एट एनी प्लेस, राइट। सो यू कैन सी, यू कैन आई मीन टाइम योर एंट्री, ठीक है। देन कमिंग टू बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो पे अभी आते हैं बाद में, हाँ। देन कमिंग टू दिस डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज एंड डेटर पेबल। सो डेटर डेज का मतलब है कि कंपनी कितने दिन में पैसा कलेक्ट कर रही है। सो कंपनी, एक बार कंपनी ने अपना मटेरियल बेच दिया, उसके बाद में कितने दिन में कंपनी को पैसे का कलेक्शन आ रहा है, दैट इज कॉल्ड डेटर डेज। देन इन्वेंट्री डेज, मतलब कंपनी कितने दिन का इन्वेंट्री रखती है अपने पास। सो अगर आप देखोगे बालाजी अमाइन का, तो पिछले 4-5 साल में देखोगे तो इट इज इम्प्रूव्ड। सो कंपनी जहाँ पहले 116 दिन और यहाँ पे 77 डेज, अब सिर्फ 2 महीने का स्टॉक कंपनी के पास रहता है। इट मीन्स दे आर कन्वर्टिंग द स्टॉक टू द फिनिश गुड्स क्विकली, ठीक है। तेजी से कन्वर्ट कर रहे हैं फिनिश गुड्स को, सॉरी रॉ मटेरियल को स्टॉक में, ठीक है, सेल में, सॉरी। देन डेज पेबल, डेज पेबल क्या है कि जितना भी कंपनी रॉ मटेरियल वगैरह खरीदती है, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी पेमेंट करती है, वो कितने दिन में पेमेंट कर रही है, दैट इज डेज पेबल। सो नाउ कमिंग टू द कैश कन्वर्जन साइकिल। सो कैश कन्वर्जन साइकिल कैसे निकलता है, डेटर डेज प्लस इन्वेंट्री डेज माइनस आपका डेज माइनस आपका पेबल डेज, ठीक है। सेम वर्किंग कैपिटल साइकिल एंड ROC तो हो गया, ठीक है। हाँ, अब आते हैं यहाँ पे प्रमोटर्स का होल्डिंग, इसमें तो खैर ठीक ही है। DII VI पब्लिक का है। अब पब्लिक में भी आप देख सकते हो कि पब्लिक में कोई बड़े बड़े भी हैं क्या। अब आप देखोगे तो 43% पब्लिक तो दिख रहा है। सडनली आप देख रहे हैं कि यार पब्लिक का भी उतना ही है, उतना ही मोटा मोटा प्रमोटर का है, क्या किया जाए। तो आपने जैसे ही क्लिक किया तो पता चला कि इसमें तो दे आर सो मेनी पीपल who are holding with good seizable shares, like 3% is good number, 3% again. Now if you see these people, अगर आप देखोगे, so Mr. Reddy, someone Vinil Reddy Nalla, and if you see the promoters as well, so they are also Mr. Reddy's only. So you can quickly see कि भाई ये भी Reddy's हैं, वो भी Reddy's हैं, तो some relatives are there, right? So you can see 3, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, तो 20% के आसपास का आपका इसमें से ऑलरेडी बड़े बड़े इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने पैसा लगा रखा है। सो पब्लिक के पास कितना है, सिर्फ 20-22% पब्लिक के पास है, ठीक है, जो हम लोग आप लोग शेयर ट्रेड करते हैं, ठीक है। सो इट वाज ए एग्जांपल जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कैसे वो होता है, कि कैसे फंडामेंटल्स कंपनी का रहता है, ठीक है। एनी क्वेश्चन टू दैट, कोई क्वेश्चंस, एनीबॉडी हैज क्वेश्चंस? अरविंद जी, उसके साथ अगर आप प्लेज पर परसेंटेज भी दिखा देंगे तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। कौन सा परसेंटेज? प्लेज। अच्छा, सो प्लेज, ओके, सो प्लेज परसेंटेज अभी इसमें नहीं है बालाजी अमाइन में। विल सी इन सम अदर, ओके, विल सी सम एग्जांपल, विल चेक। अगर किसी को याद है तो बताना, मैं वहाँ उसी को भी देख सकता हूँ, ठीक है। जी ले लीजिए या फिर कोई भी। कौन सा? अच्छा, जी एंटरटेनमेंट। ओके, जी एंटरटेनमेंट, ओके, ठीक है। जी का एग्जांपल देख लेते हैं। और अगर सर थोड़ा सा, अगर जब सबको ये क्लियर हो जाए और थोड़ा सा अगर अंदर जाए, जैसे फॉर एन एग्जांपल कंपनीज व्हिच हैज हायर डेज पेएबल एंड लोअर डेज रिसीवेबल, so that means they are actually working, they are working capital. Exactly, right. Exactly. They are negative working capital days can also be there. Exactly. मतलब कंपनी क्या है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो ऐसा है कि वो एडवांस में बेच रही है, राइट। मतलब कंपनी के पास डेटर्स है ही नहीं, वो एडवांस में, जैसे यू कैन सी द लीकर कंपनीज, उनका जनरली कम रहता है काफी, बिकॉज वो जनरली एडवांस में पे कर, एडवांस पैसा लेके ही दे यूज टू सेल, राइट। एंड और अगर पेबल लेट करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो उनके सप्लायर्स है ना, दे कैन इजीली नेगोशिएट विद देम, मे बी दे आर बाइंग ह्यूज, ओके,
maybe some raw material supplier are dependent on that leader itself, right? So they can say boss नहीं मैं 90 दिन में या 60 दिन में नहीं दूंगा, मैं 120 दिन में दूंगा पैसा, right? So those can be the cases. अगर ऐसा है तो it means आप सोचिए कि वो कंपनी का जो मैनेजमेंट है, या यू कैन सी द यू कैन आई मीन से कि उसका जो CFO है, दे आर मैनेजिंग कैश वेरी नाइसली, राइट? कोई एग्जांपल है? एनीबॉडी रिमेंबर ऐसा केस? इंडिया मार्ट रहेगा मोस्ट प्रोबेबली. इफ यू सी इंडिया मार्ट विल बी सम केस. लेट मी चेक. Delayed payment to supplier is Reliance. So इंडिया मार्ट का तो यहाँ पे कुछ नंबर ठीक से आ नहीं रहा है. अच्छा. नहीं, See, most of the platform company will have this, yeah. वो कोई किसी को याद आए तो they can tell me, we can see. Naukri, Info Edge, Naukri. Info Edge. They have a cash flow has a negative 8 crores. देखिए कैश बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, राइट? वो इंटरेस्ट कवरेज है, सो शानदार. वी कैन सी कैश फ्लो. इसका भी डिटेल है नहीं इनके पास, आई थिंक. सो इसमें मेनली अगर यहाँ पे हमको डिटेल नहीं मिलता है ना किसी कंपनी का, सो वी कैन गो एंड सी द एनुअल रिपोर्ट एज वेल. ठीक है, HUL का है. HUL का देख लेते हैं. नाइस एग्जांपल. सो HUL 11 से 15 दिन में पैसा ले लेती है अपने जिनको सेल करती है, एंड उसका इन्वेंट्री डेज इज जस्ट 2 महीने का इन्वेंट्री दे यूज्ड टू कीप, और पेबल डेज इज जस्ट अमेजिंगली इट्स अराउंड 5 months. 8 months के अंदर मिल जाए तो खुश हो जाओ. हाँ, इसका मतलब क्या है कि मे बी द रॉ मटेरियल सप्लायर्स who supplies to HUL, they are purely dependent on HUL, maybe, and that is the reason, that is why HUL is easily negotiating with them the higher payment term, right? Exactly. So this is the pole position of the company, which is squeezing their supplier, and they are getting money from the market because their brand, let's say, brand positioning is so strong. People are ready to give money in advance to purchase that product, yeah. Or in this case, they actually push it to distributors and retailers in advance, yeah. So no. Along with this, you have to look at one thing, that because people, the suppliers as well as the vendors know that this company will be paying, whether it is 6 months or 8 months, despite the interest difference, I will get my money back. They are confident. That's why they are able to sustain that. Correct. Right, definitely. True. Now see the holdings. 61% promoters, then FII, DII. Now in public as well, you can maybe some names are not there. So just 12% is on the public. So it means जो बड़े लोग हैं सब पैसा लगा के बैठे हैं शांति से, आराम से पैसा बन रहा है उनका, right? The investors, right? They know कि they are, because HUL is market leader. We can see the PE of HUL as well. So PE is 677. Now people will say कि 77 PE है, should I buy or not? Absolutely, you need to buy it. There is no reason not to buy it, because सबका सब कुछ फंडामेंटल्स भी अच्छा है, कैश कन्वर्जन भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है. So why should we wait कि नहीं बाय करना है? और PE is like, it is not like कि करंट PE रहेगा, फ्यूचरिस्टिक PE भी हो सकता है, because they are the leaders in many segments. आप नाम लोगे कि मेरे को घर में ये चाहिए, पता चला वो सब उसका ही है. दूसरा भी नाम लोगे, पता चला दूसरा भी नाम उसी का ही है. एक बार मैं ऐसे ही डिटर्जेंट ढूंढ रहा था, पता चला कि सर्फ एक्सेल भी उसका है, विम भी उसका है, और कौन सा 3-4 डिटर्जेंट HUL, सब कुछ HUL का ही है, राइट? बट यहाँ पे देखोगे तो आप इंडस्ट्री पी भी ऑलरेडी 63 है. इसका मतलब लाइक कोलगेट इज बिहाइंड द इंडस्ट्री पी. नहीं, Colgate is behind for industry PE, but Hindustan Unilever is above industry PE, right? So we are talking about the Hindustan Unilever, right? So also what I've seen is that many times in screener, the industry PE is not properly constituted.
because of the cutting of the industry that they've considered. Yeah. So right. So yeah, I mean, it's a good point you raised it. I have also noted it to share with everyone. Sometimes you will see hair industry as miscellaneous. Okay, whenever you see that, just ignore this industry PE, because that is not correct. Because in miscellaneous you can have anything, right? So आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ मैं कौन सा देख रहा था, अभी आएगा याद तो मैं बताता हूँ। सो यहाँ पे मिसलिनियस होता है तो उसको प्लीज इग्नोर इट, बिकॉज मिसलिनियस के केस में कोई भी इंडस्ट्री का किसी से भी कंपैरिजन वो लोग करके दिखा देते हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है जब भी आप matrimony.com ले लीजिए, उसमें मिसलिनियस आता है। हाँ, सो मैट्रिमोनी में मिसलिनियस आ गया। अब नाउ सी द डिफरेंसेस। आप ऐसे ही देख लोगे तो पता चल जाएगा। अच्छा, सडनली गुजरात गैस आ गया, इंडियन एनर्जी ये आ गया, कैम्स आ गया, CDSL आ गया, FL आ गया। सो ऑल आर डिफरेंट, आई मीन they are operating in different segments, so obviously they have to have the different PEs, or suddenly industry PE कितना है 22.97, so this is not correct, so we need to see that, right? ये कुछ सारी चीजें हैं जो अभी स्क्रीनर में थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं आती हैं, तो उसके लिए आई थिंक मे बी वी नीड टू गो इनटू मोर डिटेल इन फंडामेंटल्स। ओके, आई मीन कंपनी से ही देख सकते हो आप। हाँ जी अरे जी, अगर हाई पी कंपनी का भी एक अगर आप बता सकते हैं तो लोगों को मजा आएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल अदानी ग्रीन, विद अ PE of 560, which actually had a PE of 1000 roughly, yeah? 1000 का PE था पीछे। पीपल स्टार्टिंग क्रिविंग कि भैया 1000 का PE हो गया, क्या होगा इसका, राइट? सो 1000 का PE ऑब्वियसली एक सडनली एक सर्टेन स्टेज के ऊपर जाएगा तो थोड़ा कंसोलिडेशन तो चाहिए स्टॉक को। आई मीन देखिए, अदानी ग्रीन लिस्टेड हुआ लास्ट टू आई थिंक 2018 के मई जून में लिस्टेड हुआ था अदानी ग्रीन, राइट? 18 और 19 में हुआ था। 19 का मई और जून में अदानी ग्रीन लिस्टेड हुआ। ऑब्वियसली दे गॉट सम वेरी गुड ऑर्डर्स, सडनली स्टार्टेड रनिंग। बट वो जो रन कर रहा था वो था एक होप और जो ऑर्डर्स मिले उसके बेसिस पे, राइट? नाउ स्टॉक सडनली कंपनी हो गया 1,80,000 करोड़ का, तो नाउ कंपनी हैज टू डिलीवर, ठीक है? पीपल नीड टू सी कि व्हाट दे कैन डिलीवर और कितना लोन है। नाउ प्लेज देखिए कितना है, 0.8%, मतलब शेयर, मतलब प्रमोटर ने अपना टोटल होल्डिंग का 0.8% प्लेज कर रखा है। सोचिए, इतना सारा प्लेज करके लोन ही ले रखा है। कितना लोन है? अब डेप्ट टू इक्विटी देखिए, 28 डेप्ट टू इक्विटी, कैन यू बिलीव? छोटा सा इक्विटी, उसका 28 टाइम डेप्ट ले रखा है, वो भी उसमें भी प्लेज करके ले रखा है, ठीक है? सो लोन कैसे दे रहे हैं फाइनेंशियल्स? ऑब्वियसली उसका फ्यूचर ग्रोथ को देख के, बिकॉज प्रोजेक्ट काफी बड़े हैं इसके पास, अदानी ग्रीन के पास, राइट? दे आर ह्यूज प्रोजेक्ट। Besides this, ROE of this company is bigger than compared to this ROCE, means that they are not utilizing their own amount to funding. Perfect, exactly correct, right? As of now, seeing the financials, your statement is absolutely correct. Okay. ठीक है? And one example for promoter holding, एक मैं दिखाता हूँ आपको प्रमोटर होल्डिंग का। ये सोनाटा सॉफ्ट, फेडरल मोगल। अच्छा, अरे भैया फेडरल मोगल का मेरे को याद आ रहा है 2 साल पहले एक बड़ा अच्छा सेट हो रहा था ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के लिए, राइट? एंड इट कंसोलिडेटेड couple of I think around 6 to 8 weeks, or I was just ready to buy, okay? Suddenly ऐसा फॉल आया सो टेक्निकल्स में भी बड़ा ध्यान रखना है। सो प्रमोटर होल्डिंग इज 75%, ओके? नाउ लेट्स सी हियर। अब ये 94% था आई थिंक। एक और भी चीज़ है कि जब कंपनियां लिस्ट होती हैं तो देर इज सम आई मीन सम लीनियंसी इज गिवन टू देम कि वो आई मीन 75% से ज़्यादा भी प्रमोटर होल्डिंग रख सकते हैं, बट उनको वो धीमे धीमे उसको कम करना पड़ेगा। देयर सर्टेन टाइमलाइंस, ओके? तो उसके हिसाब से उनको फिर बेच के
अपना promoter holding 75% का there is a limit right now. So Federal Mughal is 75%. अब इसने यहाँ पे promoters ने क्या किया है? Actually 3 महीने पहले if you see promoter holding was 95% ना. हाँ. अभी I think they must have reduced the stake. हाँ, so this company has sold basically 20% of stake. I have not seen the technicals कि कहाँ किस price पे deal हुआ, क्या हुआ है, वो सब कुछ नहीं देखा है. Just 470. तब मैं जब ये breakout के लिए ready होता था, it was trading around 600 something. मेरे को याद नहीं है number. 600 something के trade कर रहा था. So now coming to again the presentation part, okay? So I think हमने काफी सारा discuss कर लिया. Now coming to the dividend payout part. So dividend payout. Excuse me. Yes. Just a second. Is there any strict rule of SEBI that the promoter holding should be less than 75%? मैंने पढ़ा था यार, मेरे को चेक करना पड़ेगा. I can't give the statement, but मैंने कहीं तो पढ़ा था. It was 75%. There is a limit of 75%. नहीं, ये मैंने भी सुना है कि 75% लिमिट है, बट वो मैं जानना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसा स्ट्रिंजेंट स्ट्रिक्ट रूल है क्या? मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ क्लीन साइंसेस के लिए. मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ क्लीन साइंसेस के लिए. अभी उसमें प्रोमोटर होल्डिंग अराउंड 90% है, जो भी नया लिस्ट है क्लीन साइंस. तो अब क्योंकि प्रोमोटर्स को उसको सेल करना पड़ेगा, तो मे भी यहाँ पर कुछ प्राइस करेक्शन हो सकता है, मतलब कुछ ज्यादा प्राइस करेक्शन आ सकता है, क्योंकि 90 से वो 75 करेंगे. तो इसलिए मैं पूछ रहा था उस हिसाब से. हो सकता है. There will be a time when they will have to, because that is why you have OFS. Let me share one. I remember one example of Sumitomo. Or even you can check clean sciences. Okay. Sumitomo का मेरे को example पता है, because I was trading this stock last year. तब इसका जो holding था कुछ 80% के ऊपर था, 85-90% something था, और अभी ये 75% है. So we can see this. See, but it's not necessary that the price will reduce when the promoter stake decreases. Yes. Shifting from 95% to 75% is done mainly to meet government obligation. Yeah. And we need to see that where at which price the deal has happened, because this is not something which they'll sell it in open market. This will be more of a bulk deal or OFS in some cases, So based on that, the price will behave, It's not a clear-cut answer here, Okay. Hello, Arvind ji. Yes, please. आप ये जरा एलसीड इन्वेस्टमेंट करके ये जरा एक दिखाओ ना. वो छोड़ दो सर, वो नहीं मत करो सर. ये इट्स अ होल्डिंग कंपनी. ओके, होल्डिंग कंपनी का पूरा फंडामेंटल थोड़ा अलग रहता है. ओके, दिखा रहा है. तो इट्स अ एशियन पेड होल्डिंग कंपनी. हेलो, साइलेंस प्लीज. देखिए, ये जो अपना प्रेजेंटेशन है वो भी चलने दीजिए. स्टॉक्स को थोड़ा रिड्यूस कीजिए, क्योंकि फिर हम लोग काफी देर हो जाएंगे. हाँ, it will be, I mean, ऐसे तो stocks का तो बहुत लंबा लिस्ट होएगा. We are around 100 people. I just see that message on WhatsApp right now. So we are 100 people. I mean, thank you very much. So, yeah. So now coming to the dividend payout part. So अभी आप देखोगे, I mean, obviously retirement के बाद people see कि dividend मिलना चाहिए, ठीक है. और they invest in companies जो dividend देती हैं. Coal India, REC, ITC is also giving very good dividend right now. So now we need to see some companies say we will pay. कुछ कंपनी ऐसी होती हैं कि बहुत सारा प्रॉफिट का पार्ट डिविडेंड में पे कर देती हैं, ठीक है. So there can be two reasons. One कि they think कि उनके पास अब आगे अभी कुछ एग्रेसिव एक्सपेंशन का या एग्रेसिव ग्रोथ का उस पैसे को लगा के ग्रोथ का स्कोप नहीं लग रहा है उनको, या वो अभी नहीं कर रहे हैं. दे मस्ट हैव सम प्लान्स लेटर ऑन, ठीक है. इसलिए वो पे आउट डिविडेंड अच्छा पे कर सकते हैं. दूसरा रीजन क्या है कि जैसे अब आईटीसी है, आईटीसी का एग्जांपल लेते हैं कि डिविडेंड इतना पे कर रहा है. आईटीसी के पास इतना पैसा है, दे हैव ह्यूज रिजर्व्स, राइट. अगर आप कंपैरिजन करोगे किसी भी अदर कंपनी से, तो ITC has a very strong balance sheet. This is not re-rating just because वो उसका सिन प्रोडक्ट है टैबाको, जहाँ से वो पैसा जनरेट कर रहे हैं, बट दे आर
now shifting into lots of segments. I mean, foods में they are just spending a whole lot of money to expand. अब वो बोल रहे हैं कि हमारे पास अभी इतना पैसा पड़ा है कि हम आगे अभी हमको जरूरत नहीं है और करने का, बिकॉज दे हैव पुट लॉट्स ऑफ मनी in their plant expansion and all. So now they are paying the higher dividend. They are saying the dividend policy is 80-85% whatever they will earn in a year. ठीक है, so dividend payout का रीजन ये हो सकता है. फिर बहुत दिनों से कंपनी ने बहुत पैसा इकट्ठा हो गया और अभी बोल रहे हैं कि यार ठीक है, शेयर होल्डर को भी तो कुछ देना चाहिए, तो डिविडेंड दे देते हैं, स्पेशल डिविडेंड हो जाता है, राइट. सो कंपनियां कैन डू दैट. ठीक है, और कई लोग कहते हैं कि डिविडेंड पेमेंट कंपनी करे तो बहुत अच्छा है. तो उसके दोनों हैं, प्रोज एंड कॉन्स. करने से फ़ायदा ये है कि तुमको कुछ पैसा मिल जाता है, ना करने से ये है कि कि दे कैन पुट दैट मनी इन सम अदर प्लेसेस जहाँ पे वो और अच्छा पैसा कमा सकते हैं. ठीक है, सो देखना पड़ेगा स्पेसिफिक टू एवरी. अब जो सरकारी कंपनियां हैं, जितनी भी गवर्नमेंट कंपनियां हैं, ऑब्वियसली उनको डिविडेंड पेमेंट करना ही है. सरकार को पैसा चाहिए ही चाहिए. तो आप उसके स्टेक होल्डर हो, आप उसके शेयर होल्डर हो, तो आपको भी मिलेगा ही मिलेगा पैसा. ठीक है, तो दैट्स हाउ द डिविडेंड पे आउट कॉन्सेप्ट इज देयर. ठीक है, एनी क्वेश्चंस ऑन डिविडेंड पे आउट? सर एक पॉइंट था. हेलो अरविंद जी, अभी जनरली क्या होता है, जो कंपनी जैसे गवर्नमेंट कंपनी बीपीसीएल, अभी इसने 58 रुपीज का डिविडेंड दिया था, बट पॉइंट क्या हुआ उस डिविडेंड देने का, जब शेयर प्राइस आप उसको एडजस्ट करते हो, जैसे 480 और 485 के आसपास में वो डिविडेंड था. डिविडेंड से पहले प्राइस था, लेकिन जिस दिन डिविडेंड दिया उसका प्राइस 230. कोई पॉइंट नहीं हुआ डिविडेंड का. हाँ. सो देखिए, आप सोचिए, सिंपल एग्जांपल है, आप सुनिए. आप सोचिए कि आपके पास पॉकेट में 100 रुपए हैं. ठीक है, तो आपका सामने वाला बंदा आपको 100 रुपए के हिसाब से रेट करेगा. उसको पता है कि भाई इस बंदे के पास 100 रुपए है, या मैं रुपए को लैक्स में ले लेता हूँ, इसके पास 1 करोड़ का वेल्थ है. ठीक है, तो सामने वाला आपको 1 करोड़ के हिसाब से देखेगा, यार इसके पास 1 करोड़ रुपए है. ठीक है, आप सडनली बोलोगे नहीं यार 1 करोड़ में से ना ये मैं 20-25 करोड़ किसी को दे देता हूँ. ठीक है, तो वो क्या करेगा, यार अब तो इसके पास 75 लाख ही रह गए. ठीक है, तो 75 लाख के हिसाब से ही रिलेट करेगा ना. तो अल्टीमेटली जो डिविडेंड पे आउट होता है वो आपके रिजर्व्स में से ही होता है. जो कंपनी की स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट होती है उसमें से ही तो पे आउट होता है. तो कंपनी रिजर्व बनाती है, तो अल्टीमेटली उसको जो उसके पास पैसा पड़ा है, अगर आप उसका वैल्यूएशन करेंगे तो उसके हिसाब से उसको एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा स्टॉक को, राइट. ओके, अब कम होता है. हाँ, आप डिविडेंड स्टॉक लेते हो तो वो पैसिव इनकम है. हाँ, और ग्रोथ स्टॉक नहीं, बिकॉज़ योर ग्रोथ इज गोइंग अहेड. Right. From 1980s, when the exchange was started, show me one PSU which has given you extraordinary return, except for dividends. That's not possible. Sorry, can you come in? Yeah. Arvind, the point is, what I'm trying to tell our team is here, all of them. Yes. Once, if you look at a PSU stock, it gives you dividends. Correct. That's a passive income. But right. What we look at is growth stock. Correct. Growth stock means it manifolds over. Okay. Point is that because if it is a passive income and growth stock is a leverage income. Absolutely. So we have to look at growth stocks only, because then what we want is that stock value increases and give better return on our investment. Right. So the compounding impact also comes into picture then. So एक point था उसमें. So on the dividend payout, there are many companies who actually pay. So ideally the dividend payout has to come from a free cash flow, or free cash rather than the negative cash flow. So if there any company gives out the dividend when it has a negative cash flow, then it's a red flag. No. Because usually. Okay. So the reason is yes, obviously. Yes. Borrowing the money to pay the dividend. That should not be the. Right. Definitely. So ultimately, balance sheet में मेरा एक part miss हो गया. We'll take it further as well. कि आपका बैलेंस शीट में सब कुछ दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, बहुत अच्छा है,
बट वेदर यू हैव कैश और नॉट, रिजर्व्स पड़े हैं बट फ्री कैश है या नहीं, राइट? यू शुड हैव सम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन हैंड एज वेल, राइट, टू पे दैट, बिकॉज अल्टीमेटली आपका कैश जाएगा, रिजर्व उधर से लाइबिलिटी से रिजर्व कम होगा, इधर से कैश कम होगा, राइट? सो पैसा भी होना चाहिए, व्हाट एब्सोल्युटली, या मिस्टर चिंतन, राइट? करेक्ट सर, या सो डेफिनेटली करेक्ट. देन कमिंग टू, आई थिंक हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया इसमें ऑलरेडी, बिकॉज वहाँ से, पर मैं एक बार दोबारा से कर देता हूँ. So sales growth we discuss when we we talk about the Balaji Amine example कि कभी भी जब भी आपका कुछ सडनली स्पाइक आता है, चाहे सेल्स में आए चाहे मार्जिन्स में आए, वी शुड स्टडी दैट कंपनी इन डिटेल. आई थिंक इन डिटेल इन द सेंस, अगर आपके पास बहुत टाइम नहीं है, यू कांट गो थ्रू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी, एटलीस्ट गो थ्रू द स्क्रीनर. जो मैं अभी देख रहा था, आई लाइक स्क्रीनर वेरी मच, बिकॉज बहुत आसानी से आपको सारा नंबर्स वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है? बट अगर आपको कहीं पे नंबर्स में थोड़ा ऊपर नीचे लगता है, यू कैन इजीली go to the BSE or NSE website and then you can download the annual report and you can see that, right? You can see in some other places as well कि बहुत सारा और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो अगर आपको इजीली देखना है तो, राइट? अभी तो इतना आसान हो गया है, पहले मतलब एनुअल रिपोर्ट पढ़ना इज ह्यूज टास्क फॉर एवरीवन. आई मीन अगर आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ने बैठोगे तो पूरा दिन भी लगा दोगे तो भी समटाइम्स यू फील कि यार अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं, ठीक है? बट एक ब्रीफ पिक्चर, एक ब्रीफली इफ यू सी कि कंपनी का 3-4 चीज़ें बस आप देख लोगे कि सेल्स ग्रोथ क्या हो रहा है, मार्जिन्स क्या इम्प्रूव हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, वेदर दोस मार्जिन्स आर फ्लोइंग इनटू द EPS और नॉट, वो भी आप देख लोगे. इंटरेस्ट का पेमेंट्स वगैरह सब कुछ सही से चल रहा है, नहीं चल रहा है. फिर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के लिए आप करंट रेशो देख लोगे कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी बढ़िया है, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी अच्छी है, तो इसका मतलब कंपनी के फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं. वी डोंट नीड टू वरी अबाउट कि प्राइस रोज कहाँ ऊपर नीचे जा रहा है, राइट? सो दैट्स वाई जो इन्वेस्टर्स हैं वो सब यही देख के अपना हर क्वार्टरली अपना जब भी नंबर्स आते हैं वो एक बार नज़र लगाते हैं, भाई सब ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, ओके, ठीक है, रखते रहो, राइट? So now sales growth, OPM expansion हो गया, EPS और ये मैंने बता ही दिया कि EPS में कई बार क्या होता है, एक बहुत हाई जंप होता है. So आप देखोगे न्यूज़ में, सडनली न्यूज़ में आएगा कि EPS बढ़ गया, 500% EPS बढ़ गया लास्ट ईयर से. Who is there? Can you meet please? Yeah. So क्या हुआ है, कौन है? हाँ. So कई बार आपको लगेगा सडनली कि टीवी में न्यूज़ फ्लैश कर दिए जाते हैं, राइट, कि 500% EPS बढ़ गया, राइट? तो आपको देखना पड़ेगा कि 500% क्यों बढ़ा है, कुछ अदर इनकम आया है क्या अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. आई मीन इफ यू वांट टू स्टडी फंडामेंटल्स यू नीड टू चेक कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग बिजनेस है, जो भी कंपनी जिस बिजनेस में है, वेदर दे आर अर्निंग मनी फ्रॉम दैट और दे आर अर्निंग मनी फ्रॉम समवेयर एल्स. ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट बेचे हो, उन पे प्रॉफिट हुआ हो, ठीक है, वो अदर इनकम में आ रहा हो. कंपनी ने क्या किया हो कि कंपनी ने कुछ एसेट बेची हो, उससे आ रहा हो, ठीक है, कुछ पार्ट बेच दिया हो, कोई प्लांट बेच दिया हो, राइट? सो वी नीड टू सी कि वो EPS में ग्रोथ कहाँ से आ रहा है. इट शुड नॉट बी फ्रॉम अदर इनकम एटलीस्ट, ठीक है? देन देन इंटरेस्ट कवरेज वी कवर्ड, इन्वेंट्री कवर्ड, लॉन्ग टर्म डेब्ट टू इक्विटी वी कवर्ड. सो डेब्ट टू इक्विटी के केस में भी मैंने जैसे बताया कि बोरोइंग बढ़ रही है, but what is the purpose? Let me give you an example. I mean there is lots of noise and I like that stock, but there is one red flag, but the stock is very good. I mean from my perspective, what I feel, let me show you that stock is DynPro. आपने देखा होगा, राइट? DynPro जो स्टॉक है, मैं इसमें बैठा हुआ हूँ, मैं आई फील कि इट शुड गिव मी गुड रिटर्न्स, इट शुड गिव मी किसका कॉल आ रहा है, आई थिंक. सो
अगर DynPro का आप देखोगे तो यहाँ पे there are 2 red flags in this balance sheet. अगर आप देखोगे current ratio is good, ठीक है, and interest coverage ratio is good, ROCE is less, ROE is more. तो इसका मतलब डेप्ट को अभी ठीक से नहीं लगा पा रहे हैं, मतलब नहीं पैसा कमा पा रहे हैं, बट देयर इज अ रीजन टू दैट. Promoter holding is less and debt to equity is too high. I mean it is just 1:1. ठीक है. Now let us go into the detail more. अब आप इस कंपनी को देखोगे 3 साल पहले, इट्स अ वेरी स्मॉल कंपनी, 616 करोड़, ठीक है, मार्केट कैप. अगर आप देखोगे तो 35 करोड़ का एसेट है इसके पास. राइट नाउ इट इज 34 करोड़. 3 साल पहले 35 था, सो बराबर ही है. बट देयर इज अ सिविप, 194 crore of SIVIP is going on in this company. Now this is huge. 35 करोड़ का कोई एसेट है किसी कंपनी के पास और 194 करोड़ का वो कंपनी SIVIP कर रही है. It's huge, right? Then we need to definitely study this company कि ऐसा कंपनी क्या एक्सपेंशन कर रही है कि जो 194 करोड़, which is more than around 6 times, right? 6 times of existing fixed assets. ठीक है. तो तब मेरे को ये देखना पड़ेगा ऑब्वियसली कि प्राइस में उसका एक्शन कब आएगा. दैट कैन बी लेटर ऑन एज वेल, बट जब भी आएगा प्लांट ऑलरेडी एक्सपैंड चालू हो चुका है. जो इनका दहेज प्लांट था शायद, वो ऑलरेडी दे हैव कंफर्म टू स्टॉक एक्सचेंज इन जुलाई की वो चालू हो गया. राइट नाउ एज सून एज द फर्स्ट क्वार्टर नंबर्स कम, दिस स्टॉक शुड स्पाइक in my opinion. I don't know, but it should. Now coming to the red flags. Yeah, so borrowing obviously 30 करोड़ से 101 करोड़ हुआ, 153 हुआ. तो it is easily you can see कि जो जितना भी sorry, let me take the pointer. अच्छा दिख रहा होगा ना. So you can easily see that SIVIP is 194 crore in March 21, right? And there is a borrowing of 153 crores. So इसका मतलब कंपनी जो एक्सपेंशन कर रही है, they are expanding from the borrowing. They have taken the loan and they are expanding. But the good part is whatever interest they are paying, they can easily pay that off because they have sufficient profit in hand. Okay, their interest is around 3. If I talk about the trailing 12 month, interest is 3 crore, but they have profit of 30 crore. So they have 10 times of profit. So they can easily pay the interest part. Okay. So the red flag is the promoter holding. There is a decreasing trend in promoter holding. So this is the red flag here, right? अब इसको किस वे में लेना है, कैसे देखना है, I mean time will tell. I can't comment on this. But promoter is selling, that's a red flag here. Okay. So we need to be cautious, but I mean I'm more positive than cautious in this company. Okay. और क्या था इसमें रेड फ्लैग. हाँ, एक डेप्थ था, वो बात कर लिया हमने. एंड देन प्रमोटर होल्डिंग वी डिस्कस, देन कैपेक्स. या एनी क्वेश्चन टू दिस? So Arvind ji, one question. So interest अगर 3 करोड़ ही है, so that means that it's more of a long term borrowing that they have rather than a correct definitely. So, yeah. right absolutely right. सर 3 करोड़ उनका इंटरेस्ट पे हो रहा है एंड देन ROE से कम क्यों हो रहा है? ROC इसलिए कम हो रहा है क्योंकि जो कैपेक्स उन्होंने लगाया है वो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट तो बन गया. मतलब आप जब टोटल कैपिटल कैलकुलेट करोगे तो इक्विटी प्लस डेब्ट करोगे तो वो आपका ROC के लिए बेस का पार्ट तो बन गया. इट इज नाउ like 50 रुपया. That is not paying back right now, so that's why it is. Yes, absolutely. Okay. Correct. So the point is because that capex अभी plant अभी start होके cash generate करना start नहीं किया है, that is why their ROC is less than ROE. As soon as उस plant से sale होने के बाद पैसा generate शुरू होना होगा, this ROC will increase. Okay? अरुण जी, आप डेट टू इक्विटी का जो बोल रहे हैं ना, तो उसमें just one point कि फाइनेंशियल कंपनीज लाइक बैंक्स एंड NBFC वहाँ पे वो कम्प्लीटली उल्टा होना चाहिए. जितना डेट टू इक्विटी ज्यादा है उतना बेहतर है.
बाकी सब कंपनी के लिए डेट टू इक्विटी कम है। हाँ, सो ओनली द एनबीएफसी और फाइनेंशियल कंपनीज और एक इंश्योरेंस कंपनीज है, उनको थोड़ा सा अलग से स्टडी करना है। अदर देन आई मीन वट एवर वी आर डिस्कसिंग, उनका एक अलग ही तरह का बैलेंस शीट रहता है और अलग ही तरह से उसको स्टडी करना है। दिस इज फॉर जनरल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। ओके, नाउ ये भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं कैश फ्लो पे। तो कैश फ्लो का बेसिकली क्या है, 3 चीजें होती हैं कैश फ्लो में किसी भी कंपनी का। वन इज द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज समथिंग कि मैं जिस बिजनेस में हूँ उस बिजनेस से मैं क्या पैसा जनरेट कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मतलब सिंपल कि मैं कुछ बना के बेच रहा हूँ, मोबाइल बना रहा हूँ बेच रहा हूँ, राइट? तो उससे जो मेरा बेचने से जो पैसा जनरेट हुआ दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बट सडनली मेरे पास चूंकि बहुत पैसा हो गया था, मैंने क्या कर रखा था, एक इन्वेस्टमेंट कर रखा था कहीं शेयर्स में, ठीक है? अब मैंने उन शेयर को आज बेच दिया, उन शेयर से जो मेरे को पैसा आया that will not part of your operating activities, that will be part of your investing activities, because you have some money, you have invested that somewhere, maybe in some fixed asset, maybe in some holding companies, maybe in subsidiary companies, maybe in some other places. वहाँ से जो पैसा आएगा that will become your part of your investing activities. Okay, now the third comes the financing activities. So whatever loan interest you pay or you receive, that comes under the financing activities. Okay, so sometimes let me show some example coming to balance sheet as well. कौन सा प्रोडक्ट इधर डायनामिक है, इसकी जगह कुछ और देखते हैं जो या ITC ले लें क्या? पीपल विल बी मोर इंटरेस्टेड, राइट? तो देख लेते हैं ITC के पास क्या है। देखिए नाउ सी द बैलेंस शीट। मेरा स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 20 PE। 3 साल पहले भी 20 पे था, आज भी 20 पे है, ठीक है? इंडस्ट्री का 15 क्यों आ रहा है, ये किस में आ रहा है? लेट मी सी कि क्या आ रहा है। अच्छा, सिगरेट्स में। सो देयर इज वन प्रॉब्लम विद दिस कंपनी इज कि वो अभी यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है सिगरेट से इंडस्ट्री में, राइट? तो कंपनी बिकॉज अभी जो मेन कैश पूरा और रेवेन्यू जनरेट करती है वो सिगरेट से ही कर रही है ऑब्वियसली, बट विल गो इन डिटेल। नाउ करंट रेशो इज गुड, देयर इज नो डेब्ट ऑन द कंपनी। कोई लोन नहीं है कंपनी के पास, ठीक है? सीधा इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ऑब्वियसली लोन नहीं है तो इंटरेस्ट भी नहीं होगी, कोई छोटी मोटा कुछ नंबर्स होगा जो नॉर्मली रहता है। नेट ब्लॉक 3 साल पहले आवाज नहीं आ रहा सर। आवाज बिल्कुल बंद हो गया। Not audible. Hello, can you hear me? Yes, now we can hear you. Okay. सर आपका ग्रुप का लिंक पोस्ट कर दीजिए चैट में, जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए, फ्यूचर गाइडेंस के लिए। अच्छा, हाँ, अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेट मी फर्स्ट फिनिश दिस। ओके, हाँ, hello, can you hear me? Sorry. Yes, please. Yes, sir. Yeah, let me share my screen. So we were discussing about the ITC. So you can see my screen, right? Hello? Yes. Okay. Yes. So तो ITC का हम बैलेंस शीट देख रहे थे, ठीक है? We were talking about the फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो वाला देख लेते हैं ITC का, ठीक है? नाउ सी दिस कंपनी। मेरा ऑपरेटिंग इनकम है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो है 12,000 करोड़, ठीक है? मैं कमा रहा हूँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से 5,740 करोड़, ठीक है? बट आई एम पेइंग 18,000 करोड़। मे बी क्या पे कर रहे हैं देख सकते हैं एक बार। सो व्हाट आई पेड इज डिविडेंड, ठीक है? जो भी बोल रहे थे ना कि ITC का पॉलिसी चेंज हो गया है डिविडेंड पे आउट का। पहले तो 3-4 रुपए देते थे साल में, अभी 8-10 रुपए दे रहे हैं, ठीक है?
So they have changed their policy कि 85% हम पे करेंगे जितना भी profit आएगा, right? So now see, they have paid the dividend. 18,000 crore dividend they have paid in financial year 2021. Okay. If we see from investing activities, what they did. So they purchased some investment, they sold some investment, there's some income out of that. So that is flowing to cash flow from investing activities. Okay. Then operating income is like profit from operations is 17,000 crore. Okay. And then ये inventory का payable है. Okay. So okay, ठीक है. So 12,000 करोड़ इन लोगों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कमाया है, ठीक है. और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से 5740 करोड़ कमाया है और 18,000 करोड़ जो कमाया वो इन्होंने एज ए डिविडेंड दे दिया, ठीक है. So that is the financing activities, cash from the financing activities. You can see now the balance sheet part. Now see the reserves. The company have 59,000 crore reserves even after paying 18,000 crore dividend. Okay, they don't have loans. 200 crore is nothing in this size of balance sheet. Now see the capex part and then the investment part. See the investment part. 24,000 crore investment. Then coming to the cash and cash equivalent. 4,500 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है कंपनी के पास, ठीक है. सो ये था अपना ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है. नाउ कमिंग टू द प्रेजेंटेशन पार्ट. ओके, रेड फ्लैग्स. अब रेड फ्लैग क्या हो सकते हैं? रेड फ्लैग कैन बी मैनी, ठीक है. There are some examples. I'm just giving some examples. कि राइजिंग इन्वेंट्री डेज, मतलब आपका स्टॉक होल्डिंग डेज 60 दिन था, ठीक है. सडनली वो बढ़ के 90 दिन हो गया, 120 दिन हो गया. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि कंपनी जो पहले स्टॉक 60 दिन का रखती थी, नाउ दे आर कीपिंग 60 डेज स्टॉक. इसका मतलब क्या है कि उनका दे कांट सेल देयर स्टॉक इन मार्केट क्विकली, ठीक है. इट मींस दे कांट सेल देयर स्टॉक क्विकली इन मार्केट. अब वो देखना पड़ेगा कि क्या रीजन हुआ है. मे बी सम अदर कंपटीटर केम, मे बी समथिंग हैज हैपेंड. देखना पड़ेगा उस डिटेल में कि ऐसा क्यों हुआ. तो आपको अगर वो देख लेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा. अगर ये कम हो रहा है तो इसका मतलब दे आर कन्वर्टिंग देयर स्टॉक क्विकली टू सेल. मतलब वो हो गया 30 दिन का इन्वेंट्री डेज. इट मींस कि सिर्फ 30 दिन का इन्वेंट्री रह रहा है और बाकी फटाफट वो साल में 12 बार उसको रोटेट कर पा रहे हैं, राइट. देन इंक्रीज इन डेटर कलेक्शन डेज. मतलब अब कई बार क्या होता है, आप देखोगे बहुत सारा कि सेल बढ़ रहा है, बहुत सारा सेल बढ़ रहा है और बड़ा अच्छा लगता है कि सेल तो यार ग्रो कर रहा है, सब कुछ ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, पैसा नहीं आ रहा पर, ठीक है. मतलब इन डेटर कलेक्शन डेज कहाँ हो गए? डेटर कलेक्शन डेज सडनली जो पहले 100 थे आज 365 हो गए. अगर 365 डेटर कलेक्शन है, इसका मतलब क्या है कि पूरी साल जो बेचा उसका पैसा आया ही नहीं, राइट. तो इसका मतलब देयर कैन बी इन्फ्लेटेड बिलिंग, देयर कैन बी फेक बिलिंग, कुछ भी हो सकता है, वो देखना पड़ेगा. बट देयर इज अ रेड फ्लैग टू दैट. अगर इफ देयर इज एन इंक्रीज इन डेटर कलेक्शंस. हाई डेट टू इक्विटी मैंने बता ही दिया. आई मीन सॉरी मैंने पॉइंटर नहीं ले रखा. हाँ, सो इंक्रीज इन डेटर डेट. देन हाई डेट टू इक्विटी मैंने बताया ही था कि हाई डेट टू इक्विटी के केस में सिर्फ हमको स्क्रीन देख के कि इसका डेप्ट इतना ज़्यादा है वो नहीं देखना है. एक बार थोड़ा सा डिटेल में देखना है कि ऐसे ही लिया है वो इतना लोन या कंपनी वांट टू एक्सपैंड. मे बी लाइक द एग्जांपल इज डाइनप्रो. डाइनप्रो ने लोन जो ले रखा है सारा, इट इज फॉर एक्सपेंशन. दे हैव डन एक ह्यूज एक्सपेंशन. छोटी सी कंपनी इतना एक्सपेंशन कर रही है, ठीक है. तो वो हमको चेक करना पड़ेगा. देन लो करंट रेशो, मतलब आपके पास लायबिलिटी है 2 रुपए की और एसेट है 1 रुपए का. सो मतलब क्या है कि आपके पास, सॉरी ये करंट एसेट करंट लायबिलिटी की बात कर रहा हूँ. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको पे ज्यादा करना पड़ रहा है और आपके पास पैसा कम है. अगर मेरे पास मंथली इनकम लाख रुपए है और 2 लाख पे करना है तो मैं एक दिन कोलैप्स ही हो ही जाऊंगा, राइट. आई कैन सर्वाइव सम मंथ्स बट आई कांट सर्वाइव मोर. तो वो हमको एक बार देखना पड़ेगा. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपनी के पास कैश फ्लो है या नहीं, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी है नहीं. आप जो लोग कहते हैं कि केमिकल कंपनियों का इतना हाई वैल्यूएशन क्यों है, इफ यू सी द ऑल दीज थिंग्स इन केमिकल कंपनीज,
they are generally debt free companies, और debt है भी तो बहुत छोटा debt है उनके पास, और they are having very nice current ratio, बहुत शानदार उनका current ratio, they are having very good ROC, ROE, they are having very good revenue growth. So what is the reason to doubt on that, right? अब जब कभी इशू आएगा तो स्टडी करके देखा जाएगा, राइट? देन प्रमोटर सेलिंग का हम लोगों ने एग्जांपल लिया था डाइन प्रो का, प्रमोटर इतना सारा सेल कर रहे हैं, तो इट्स अ रेड फ्लैग ऑब्वियसली कि प्रमोटर सेल क्यों कर रहा है। और कई बार प्रमोटर सेल करता है, स्टेक सेल करता है, मतलब कोई बंदा बाय कर रहा है कुछ स्टेक, तो वो दैट कैन बी ए पॉजिटिव ट्रिगर कि भाई उसने कोई नया, जैसे आप देखोगे बहुत सारी कंपनीज में कोई फॉरेन कंपनीज बाय कर लेती हैं स्टेक्स, ठीक है, 10%, 15%, 20%। सो वहाँ पे आई थिंक इन दैट केस कि कोई बाहर का इन्वेस्टर आ रहा है, एक जनरल परसेप्शन है कि बाहर का इन्वेस्टर आ रहा है, उस कंपनी में पैसा लगा रहा है, 10%, 20% स्टेक खरीद रहा है। सो इन माई ओपिनियन वी शुड टेक इट इन पॉजिटिव वे, बिकॉज he will bring his experience, he will try to change management if there is something issue, there are some issues, he will do everything because उसने पैसा लगाया है, now he will do everything कि company should run, ठीक है। So promoter selling, then financial mismanagement. So financial mismanagement का एक example तो बस यही है कि suddenly जब भी कोई ऐसा न्यूज आता है, कुछ भी कोई किसी कंपनी के यहाँ पे कुछ रेड पड़ा, ईडी का कुछ चल रहा है, या कोई भी ऐसा न्यूज आता है, तो आई थिंक दैट्स अ रेड फ्लैग एंड वी शुड नॉट कि वो 10% स्टॉक गिर गया तो यार ये तो बहुत चल रहा था, 10% गिर गया तो मैं खरीद लूं। आई थिंक वी शुड अवॉइड दोज बिकॉज वी डोंट नो वेयर इट विल गो। लाइक यस बैंक इज एन परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दैट। यस बैंक वाज ट्रेडिंग अराउंड 400 इन 2018 और वो ऑल टाइम हाई पे था, मैं भी खरीद रहा था, ठीक है। एवरीबॉडी वाज सेइंग इट्स अ नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक, ठीक है। सडनली एक कुछ न्यूज आता है और यस बैंक गिरना शुरू हो जाता है एंड पीपल आर बाइंग, मतलब 10% गिरा खरीद रहे हैं, 20% गिरा और खरीद रहे हैं, और आज वो 14 रुपए आ गया है। नोबडी नोज कि इट विल बी 14 है, पता नहीं कितना है, आई डोंट सी। मैं लैगार्ड देखता ही नहीं हूँ, आई नेवर सी लैगार्ड्स इन माई लिस्ट। यू विल सी ऑलवेज द ऑल टाइम हाई स्टॉक्स। आई ऑलवेज ट्रेड इन ऑल टाइम हाई स्टॉक्स, आई नेवर ट्रेड इन लैगार्ड्स। मतलब जो सीखने के बाद, पहले तो ऑब्वियसली सबने किया, ठीक है तो सीखने के बाद सो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का ये है। एक आपका पीसी ज्वेलर्स भी एक एग्जांपल है फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का, राइट। तो ये सब देखने पड़ेंगे कि उसमें हमें जंप नहीं करना है कि यार ये तो पहले 400 का था, अभी 200 रुपए में मिल रहा है। सो देयर इज अ रीजन टू दैट कि वो 200 रुपए में क्यों मिल रहा है, एंड वो कल को 100 रुपए हो जाएगा तो आप बोलोगे यार ये तो 100 रुपए आ गया। तो 100 जो 400 से 200 आता है, वो 100 से 200 से 100 भी आ सकता है, ठीक है। सेम वे अदर वे अराउंड इज, जो 200 से 400 गया है वो 400 से 800 भी जाएगा, राइट। तो अल्टीमेटली वी शुड ट्राई टू बाय द स्टॉक्स व्हिच आर मेकिंग ऑल टाइम हाइज, व्हिच आर मेकिंग न्यू हाइज, ठीक है। उस पे भी एक सेशन अभी आगे लेंगे, टेक्निकल पार्ट ऑफ दैट। यस यस, हाउ टू सेंस फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। सो पीयूष जी, ऐसे तो किसी को कभी पता नहीं चलता है, राइट, कि अंदर क्या क्या चल रहा है। अगर आप जितने भी ये फंडामेंटल इंडिकेटर्स हैं ना, जो हम लोग ये सब देख रहे हैं ना, अगर आप इनको भी थोड़ा बारीकी में देखोगे ना, तो यू विल गेट ए क्लू इन द सेंस कि जैसे डाटा कलेक्शन का ही मैंने बताया, अगर डाटा कलेक्शन 100 से 200 हो गया है तो देयर इज ए प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम न्यूज कब बनेगी, नोबडी नोज। आप समझे मेरा बात? सो जो फाइनेंस सो द पॉइंट इज कि आप जब फंडामेंटल्स देख रहे हैं, कहीं पे भी कुछ भी स्पाइक आ रहा है, स्पाइक इन द सेंस इन्वेंट्री डेज सडनली बढ़ गया, भाई क्या हो गया, यू शुड सी। अगर आपके पास वो शेयर है उस कंपनी का और आप 5 मिनट लगा के आपने ये सब चेक किया है और सडनली देयर इज स्पाइक इन कलेक्शन डेज, इन्वेंट्री डेज, आई थिंक यू शुड स्टडी दैट एज एन इन्वेस्टर बिकॉज यू हैव पुट योर हार्ड अर्न मनी इन देयर स्टॉक, ठीक है। गो एंड चेक, मे बी यू चेक द एनुअल रिपोर्ट, मे बी यू चेक, अगर वो जैसे लेटेस्ट मार्च में ही हुआ है तो आप एनुअल रिपोर्ट में आपको सब मिल जाएगा। अगर जून में हुआ है तो आप एक बार जाके देख सकते हैं। ऑब्वियसली जून वाले क्वार्टरली नंबर्स में आपको बहुत कुछ दिखता नहीं है ये सब, बट एनुअल रिपोर्ट में जाके आप कुछ सर्च कर सकते हो कि क्या इशू चल रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ हिंट क्लू मिल जाएगा, बट अगर इन्वेस्टर हो तो थोड़ा देखना भी पड़ेगा, राइट। सो I can also add few things here, on finance. Yeah, sure. So you need to see the
if the company has a lot of subsidiaries, yeah, so that is also always one concern. Whether is it due to the nature of the operation? Just for an example, Root Mobile is a very good company, yeah. But if you see, Root Mobile has a lot of subsidiaries. Now here, the reason is that they need to have it because of the governmental regulation for various countries that they operate in. But अगर आप दूसरी कोई कंपनी पकड़ते हो जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया की कोई, and if they have so many different subsidiaries, then there is always a concern for related party transaction, yeah. कि कंपनी पैसा उठाती है अपने नाम पे और दे देती है दूसरी किसी कंपनी को, वो जाके कुछ भी कर, and those companies are not listed, and that's when you will see the उनका कुछ मिलता नहीं है अपने को. Exactly. So the companies with a high number of subsidiaries is one area. Okay. Second thing is that, for an example, in the case of Sequent Scientific, you would have seen before the Carlyle Group takeover, the share jumped up very high. Yeah? And after that, once Carlyle Group, released the first quarter result after the takeover, they said that there was a financial mismanagement. So इधर कंपनी ने क्या किया था? कंपनी ने सेल्स बढ़ा दिया था, okay, by fictitious reporting कि भाई तू मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है, तू एक काम कर, अभी मुझे एक ऑर्डर का दे दे, पीओ दे दे कि मुझे ऑर्डर इतना देना है, बट बाद में तू 10 दिन के बाद वो कैंसिल कर देना ऑर्डर, ठीक है? तो इससे क्या होगा, जब मेरा एक्सचेंज के साथ फाइलिंग है तब सडनली मेरा सेल्स बढ़ जाएगा, बट मेरा रिसीवेबल नहीं बढ़ेगा उसके हिसाब से, या so that could be also another area which is very very, let's say, eye raising thing, but it becomes very difficult for this kind of thing for a retailer to monitor. It's better to be, आप देखो न्यूज़ पढ़ते रहो, कहीं ना कहीं आ जाएगा न्यूज़पेपर में, तो उस take action at that time, because problem क्या होता है कि I mean if you have 30-40 companies in your portfolio, it's very difficult to see all this. Correct. Right, definitely correct. So the point is, मेरा एक सिंपल व्हाट आई सिंपली फील इज, बड़ा सिंपल सा एक तरीका है, वही जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कहीं भी नॉर्मल से ज्यादा स्पाइक आता है, कहीं भी, वी शुड स्टडी दैट. इट कैन बी इन पॉजिटिव वे, इट कैन बी इन नेगेटिव वे, बोथ वेज. कहीं भी नॉर्मल से मतलब 10-15%, 20% इज ऑब्वियसली एवरीबॉडी नोज कि नॉर्मल है, ग्रोथ हो या डीग्रोथ हो, बट 50%, 100% कुछ भी बढ़ रहा है, we should study that. Okay. Sorry to interrupt, Arvind. Thank you. Yes. What a great insight you've given into a lot of things. My mobile is about to punk off, so I have to leave you guys. Okay, it's one. Okay. No. So, thank you so much. I cannot express in words, but fantastic. Thank you. I salute you, buddy. Thank you. Bye. Thank you very much. So that was it from my side. I think any Hello, other Arvind, questions? Sir? Yes. सर, ये कंपनी का बायबैक के बारे में एक पूछना था सर. बताइए. तो ये बायबैक जो करते हैं तो प्रमोटर करता है कि कंपनी, इसके बारे में थोड़ा मुझे जानकारी चाहिए. नहीं, बायबैक ऑब्वियसली कंपनी करती है. सी, प्रमोटर क्या है? प्रमोटर तो पार्ट ऑफ कंपनी है ना. तो बायबैक इज बीइंग डन बाय द कंपनी ओनली. प्रमोटर्स डायरेक्ट नहीं करते सर? नहीं, सी, कंपनी एक तो है, कंपनी बायबैक कर रही है, एक है कि प्रमोटर मार्केट से खरीद रहा है, सो वो अपना स्टेक बढ़ा रहा है, ठीक है. कंपनी बायबैक करना भी ऑब्वियसली ऐसे ही है, बट कंपनी के बायबैक में भी वो तो ये प्रमोटर का स्टेक बढ़ता है. राइट. वो फ्री फ्लो मार्केट से खरीदता है. हाँ, राइट. बोथ आर राइट. आई थिंक दोनों अलग है सर. वो प्रमोटर अलग से खरीदता है और बायबैक प्रमोटर, हाँ, बायबैक इज लाइक कि ऑफिशियली कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि हम बायबैक कर रहे हैं. प्रमोटर मार्केट से आराम से भी खरीद सकता है. जैसे अभी कुछ दिन पहले इन्फोसिस ने किया था. हाँ, राइट. आई थिंक बायबैक का फायदा है कि ईपीएस जंप करेगा और फ्री फ्लोट जो है वो कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा. हेल्प्स द कंपनी, इसलिए प्रमोटर का स्टेक भी बढ़ जाता है. इसलिए जी. तो मेरा ट्विटर हैंडल है AS Arvind Sharma. ओके, with the name of Trade the Trend करके है, ठीक है. If anybody wants to, मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ weekend, so you can see that. ग्रुप में लिंक दे दीजिएगा सर आपका ट्विटर. हाँ, definitely. Yes, please share your Twitter handle link in the group.
And beside this, Arvind ji, can you check this Rama Phosphate, the balance sheet? Just a minute. Rama Phosphate. इन बैलेंस शीट तो अच्छा लग रहा है। आई मीन नंबर्स आर, अगर आप ऐसे ही देखोगे बैलेंस शीट में 2 पार्ट है, इंपॉर्टेंट रहता है। आई मीन 3 पार्ट आप ले सकते हैं। वन इज की करंट रेशो क्या है, जो यहीं पे आप समरी में, यू कैन सी माय स्क्रीन राइट? Yes, definitely. हाँ, so current ratio is 2.24. Debt to equity is, it's a debt-free company. Interest coverage ratio is perfect. Then net block अभी कंपनी ने but it was 31 करोड़, now it is 72 करोड़. So आप अगर ऐसे ही इन जनरल जो ये स्क्रीनर बना रखा है ना बड़ा छोटा सा, इन जनरल इसी को देखोगे तो आपको सब कुछ दिख गया एक तरह से। But the only concern is the pledge. कंपनी ने बहुत कुछ प्लेस कर रखा है, राइट? हाँ, ये जो अपना प्रमोटर से एक्सपेंशन कर रहा था वो वही इसी चीज के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें अब ये देखो इसका कुछ, हाँ ये न्यू मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पर। सो आपको अब क्या करना पड़ेगा इसके लिए, आपको इसका, अगर आपने ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको 10-15 मिनट लगा के इसका एक बार एनुअल रिपोर्ट निकाल के देखना पड़ेगा, ठीक है? अगर ये एक्सपेंशन के लिए इन्होंने इसको प्लेस कर रखा है तो आई थिंक रेड फ्लैग तो है, बट बिकॉज दे वांट टू ग्रो, दैट्स व्हाई दे हैव प्लेस्ड देयर शेयर्स, ठीक है? जैसे अभी लॉरस लैब इज एन परफेक्ट एग्जांपल, कितना सारा प्लेस किया था उसने कि एवरीबॉडी वाज सेइंग कि ये तो भरा पड़ा है प्लेस से, बट जैसे ही नंबर्स आना स्टार्ट हुआ उसका एक्सपेंशन के बाद में सारा प्लेस खत्म ना हो, लॉरस लैब्स यू कैन सी कहाँ पे है, ठीक है? तो इसलिए मेरा वो लोग है व्यू, तो मैं जनरली जो एक्सपेंशन के लिए प्लेज हो चाहे डेप्ट हो, मैं उसको पॉजिटिव वे में लेता हूँ रादर देन नेगेटिव वे, सब्जेक्ट टू कि मेरे पास प्रॉपर्ली इंटरेस्ट कवरेज रेशो हो, प्रॉपर करंट रेशो हो, मतलब मेरे पास शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी परफेक्ट हो और मैंने जो लोन लिया है उसका मैं रीपेमेंट, इंटरेस्ट का रीपेमेंट साल में जितना है वो मैं आराम से कर सकूँ, ठीक है? वो दो चीज़ अगर मेरे पास परफेक्टली हैं तो आई टेक इट इन पॉजिटिव वे if we are taking any loan for expansion. थैंक यू अरविंद जी, बहुत बढ़िया लगा, मतलब ये इस चीज़ में बहुत कुछ, मतलब ये सीवी वगैरह मुझे पहले नहीं पता था, मुझे अब ये कुछ समझ में आ रहा है, तो थैंक यू सो मच। और एक और चीज़, जो आप फंडामेंटल के लिए अगर कुछ आप स्क्रीनर पे, मतलब आपने वो अपना स्क्रीनर बना रखा है, अगर आप वो शेयर कर पाते तो वो थोड़ा ज़्यादा। हाँ, मैं अभी ग्रुप में मैं अपना स्क्रीनर शेयर कर दूंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, नॉट एन इशू। तो ये आप वहाँ से कॉपी सर, कौन सा ग्रुप आपका, कोई व्हाट्सएप ग्रुप है? नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप तो यही है, यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर। मनी विकास है, you said I'll share in the group, so yeah, anything else, any other question? ये आपने HLE ग्लास कोड खोला हुआ था, एक बार उसको स्टडी कर दीजिए, HLE ग्लास कोड। अच्छा चलो HLE ग्लास कोड को देख लेते हैं, फंडामेंटल्स। क्योंकि मैं पहले जब मैं ट्रेडिंग मैंने स्टार्ट किया था तो मैं रोज ऑब्वियसली हर रोज बड़ा इंटरेस्ट रहता है ना, नया जब ट्रेडर बनते हैं तो हर रोज स्टडी करते थे, ठीक है? नाउ आई स्टडी ऑन वीकली बेसिस। मैं सिर्फ वीकली स्टडी करता हूँ, वीकली सैटरडे संडेज 7-8-10 घंटे लगा के, जो भी मेरे को अच्छे लगते हैं स्टॉक्स, आई यूज्ड टू पुट देम ऑन ट्विटर कि मेरे को ये अच्छे लग रहे हैं आगे, और आई थिंक सही भी है, चलते भी है। So you can see that. See now the HLE glass part. So मैंने ये basically summary अपने लिए बना रखा है, ठीक है? जो summary है ना ये, because anybody can make, it's a customize, आप यहाँ पे edit करके जाके add delete कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है? So how do you get the trigger? Like what stocks are good to buy? हाँ, nice question. So Sri Ram, yeah. So मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक थोड़ा सा मैंने 2-3 स्क्रीनर लगा रखे हैं। व्हाट आई डू इज कि इफ आई सी दिस, ये मेरा एक वो है कि टेक्निकल शेयर प्राइस के एक्शन के हिसाब से कि शेयर ऑल टाइम हाई पे वीकली 52 वीक हाई के विद इन 85% है, मतलब 10-15% करेक्ट हुआ है, ऑलमोस्ट वो डबल हो चुका है साल में, ठीक है? शेयर 30 रुपये से ज़्यादा है, 30-40 रुपये से ज़्यादा वैल्यू का है। मार्केट कैप में थोड़ा लो, मैं थोड़ा हाई मार्केट कैप में नहीं ट्रेड करता, आई यूज्ड टू ट्रेड इन लो मार्केट कैप लाइक 1000 से 30-40 हज़ार करोड़ के बीच में, ठीक है?
देन लेटेस्ट क्लोज और ये सब तो ठीक है। उसके बाद ये स्क्रीनर आ जाए, ये बहुत सारे स्टॉक्स आ जाते हैं लिस्टिंग, ठीक है। देन आप ये सब स्टॉक को फिर जाके स्टडी कर सकते हो कौन सा टेक्निकली सेट हो रहा है नहीं हो रहा है, देन यू कैन गो इनटू द फंडामेंटल्स, ठीक है। और द अदर वे इज बड़ा इजी वे, अगर आपके पास MSI है, मार्केट स्मिथ है, तो वहाँ पे मार्क मिनर्विनी का 5 मंथ्स वाला मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ, सो यहाँ पे मार्केट स्मिथ में भी मार्क मिनर्विनी का बड़ा इजी ये है, एक सब आ जाता है यहाँ पे, ये 5 महीने वाला जो ट्रेंड वाला है, यहाँ पे अच्छा खासा लिस्ट आता है। यू कैन स्टडी हेयर एज वेल, बिकॉज बड़ा इजी हो जाता है इसमें, है ना, MSI। सो यस, दिस वन क्यों नहीं चल रहा? MSI डाउन है क्या, मतलब क्या बोलते? सो MSI आप, अच्छा, सो MSI में जाके भी आप देख सकते हैं, हाँ राइट, सॉरी। सो दे आर 452 रिजल्ट आया है, अब यहाँ पे आके स्टडी कर सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, लाइक एक है अपना पनामा पेट्रो, पनामा पेट्रो, यस। तो पनामा पेट्रो अगर आप देखोगे तो फंडामेंटली गुड है, सब कुछ बढ़िया है, और नाउ इट इज मेकिंग ए बेस अराउंड जो उसका पुराना ऑल टाइम हाई था 17 में, उसके पास बेस बना रहा है वो, राइट। उसी प्राइस पे इट इज कंसोलिडेटिंग। फॉर मी, मैं जो ट्रेड करता हूँ जनरली, आई यूज टू फाइंड स्टॉक्स विच हैव मेड ए ह्यूज बेस, मतलब जितना ज्यादा होगा, 10 साल का पुराना कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होगा उतना स्ट्रॉन्ग है, 4 साल 3 साल 5 साल। तो जब ये चलना शुरू होते हैं तो इनका एक अलग ही तरह का चाल होता है ठीक है। सो अभी आप देखोगे कि इसका ऑल टाइम हाई पुराना 265 था, और 265 से ये अभी 265 के पास उसी को सपोर्ट लेके वहीं पे बेस बना रहा है, राइट। एज सुन एज ये अभी ब्रेकआउट जब करेगा तो इट विल हैव ए गुड रन इन माय ओपिनियन, और RSI भी अच्छा है तो इट्स अ रन, ठीक है। सो इट्स एन एग्जांपल। नाउ HLE कोड पे आते हैं। HLE कोड पूछा था किसी ने, सो HLE कोड अगर मैं देखूं ग्लास कोड, सॉरी, 3 साल पहले सिर्फ 24 करोड़ का एसेट था, आज एसेट है 114 करोड़, तो कंपनी 4 गुना एसेट कर चुकी है, राइट। डेप्ट टू इक्विटी 0.5 के नीचे, ठीक है, फिर भी देख लेंगे कि डेप्ट क्यों लिया हुआ है, ठीक है। करंट रेशो थोड़ा सा 2 से कम है, तो ठीक है, उतना भी खराब नहीं है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी ठीक है। नाउ ROC ROE भी ठीक है, ठीक है। एंड नाउ लेट्स गो टू द बैलेंस शीट। Sales growth is just awesome, right? ठीक है, मार्जिन्स भी 2% एक्सपेंड हुए हैं, ठीक है। दिस फ्लोइंग इनटू द EPS। नाउ कमिंग टू द बैलेंस शीट पार्ट। सो आप देखोगे तो कंपनी के पास 74 करोड़ का लोन है, फिक्स एसेट इज 114 करोड़, इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है 34 करोड़ का। तो बैलेंस शीट इज गुड, आई थिंक, उतना कोई खराब इसमें कुछ रेड फ्लैग है नहीं बैलेंस शीट में। ऑब्वियसली लोन ले रखा है तो पीछे इन्वेस्टमेंट भी है 34 करोड़ का, तो लोन भी है तो इन्वेस्टमेंट भी है, कुछ ऐसा इशू मेरे को लग नहीं रहा है। सो बैलेंस शीट इज गुड, ठीक है। सर एक बार डायनामेटिक टेक्नोलॉजी चेक करेंगे? ROE माइनस है। हाँ, माइनस है, इसका मतलब पैसा कमा नहीं रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं सो डेब्ट टू इक्विटी इज ह्यूज, आई मीन इंटरेस्ट कवरेज है, तो मतलब जितना साल में कमा रहे हैं उतना तो ब्याज भी देना है इनका, 1.14, उससे ज्यादा ब्याज देना है, ठीक है। और सिविप की बात करें तो कोई ग्रोथ नहीं है, कैपेक्स कुछ भी नहीं है, उल्टा कम ही हुआ है, ठीक है। और करंट रेशो तो ठीक है, प्लेस भी कर रखा है। सो सी अल्टीमेटली whenever we are investing in a company, we should find best out of best, okay? जो भी अच्छे से अच्छी है वो ढूंढनी चाहिए हमको, ठीक है। ऑब्वियसली दे आर मल्टीपल टाइप ऑफ ट्रेडर, कोई इंट्राडे करता है, कोई स्विंग ट्रेडिंग करता है, कोई इन्वेस्टर है। सो वी नीड टू सी द स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग एज वेल। अब इंट्राडे के लिए ये सब नहीं चाहिए डेफिनेटली, राइट ठीक है। बट अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग भी करनी है तब भी एक बार फंडामेंटल चाहिए,
what I think so, because उससे आपका probability बढ़ता है to have the good run in any stock. ठीक है? Yes, but sir ये particular company में अगर देखेंगे ये almost pre-COVID height तक पहुंच चुका है and almost but अगर financial इतना खराब है तो how it is moving and इसका जो आपका volatility है वो भी high है. Just एक बार check कीजिए. हाँ एक बार मैं एक मिनट दीजिए जरा. So let me see कि और ऐसा क्या है इसमें जो आप बोल रहे हैं. I can answer that question actually. See, okay. This is have you seen that? No, I know about this company. See, it's a this company is actually this जो spike आपको देखने को आया ना, that is based on the recent news that the company has gained a very huge order from I think Airbus or Boeing or something. Okay. And there is also a defense play here. Okay. And government of India का जो defense play है, उसमें the company is supposed to gain some money. So that's why you see this. Yeah. And moreover, the problem why this company is ailing is that the entire aviation sector, defense sector has a huge incubation period. So उनको रुपया अभी खुद के पैसों से डालना पड़ता है और वो वापस आते उनको बहुत साल लग जाते हैं. Okay, so that's why the financial are roughly fucked up in this particular company. देखो हर एक कंपनी को पकड़ना जरूरी नहीं है. Okay, अगर financials खराब है तो जाने दो. You'll miss out on 10-20% in this particular company, but you'll get it from another company in the longer run. Yeah. Yeah, true. So, I just want nicely to know played by Chintan. what. Yes, actually, I just want to know why this financials is bad, but after that also price is just running. So Somnath ji, see the point is sometimes what happens? अब suddenly government का order आ गया, ठीक है? And whatever Chintan said, अब आपका numbers तो quarterly आता है ना? Yes. Numbers तो quarterly आएगा और एक quarter क्या हो सकता है 2 quarter के बाद भी आए because nobody knows कि वो order कितना दिन में dispatch करना है, कितने दिन में बनाना है, right? Obviously order they have, like Adani Green is perfect example. उनको 40-50 हजार करोड़ का order मिला, ठीक है? Order मिला, everybody knows कि order मिला है, काम कर रहे हैं, 5 साल में 6 साल में आएगा. Stock is growing like anything. But उन्होंने फाइनेंशियली तो अभी उनको डिलीवर करना है, ठीक है? Yes. Now it is up to you whether आप ऑर्डर के बेस पे ही आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है और you want to see कि whether that company is outcome of the well or not, right? result जो आएगा उसके ऊपर. Correct. So the point is whenever you invest you should increase the probability of making it good. The point how you can make it if you have everything in its place, right? वो फंडामेंटल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, कंपनी इज डिलीवरिंग, मैनेजमेंट इज गुड, सब कुछ आपको लग रहा है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी, सेल्स इज ग्रोइंग, सब कुछ अच्छा है, तो डेफिनेटली योर प्रोबेबिलिटी इज हाई कि आपने इन्वेस्टमेंट अच्छा किया है, राइट? बट कहीं पे भी अगर आप सिर्फ ऑर्डर उन सबके बेस पे तो यू कैन समडे यू कैन गेट इनटू ट्रैप एज वेल, राइट? स्पेकुलेशन पे चल रहा है बेसिकली इन दैट केस. यस. थैंक यू सर, थैंक यू, नाइसली explain. Sir. Yes. Do you do any trade calculation? Like what is the weight? Your voice is breaking, Sriram. Can you speak again? Yeah, sure. So we will we will wrap up in next 5 minutes. The point is because it's around like 10 o'clock. 9:45. One last question. Yeah, please. Yeah. See, you do fundamental analysis. You see some good strengths. You see some concerns out there. Do you do any marks like these are the good points, these are the bad points? And how do you conclude whether it is good to enter or good to leave the stock? Okay. Say for example, promoters are continuously selling. However, rest of all parameters, like profit earning ratios, return on capital equity is growing, sales are growing, debt to equity is 0. How do you read that? So I think that's a very good question, and there is no perfect answer to that question, right?
but let me try to explain in my way. So what I said earlier, in case of DynPro, right? कि मेरा है promoter sell कर रहा है, I can see that, right? Promoter is selling. Yes. But company is, there is only two red flags. One is the debt, other one is the promoter selling. Promoter selling एक red flag हमेशा है in case of DynPro, but debt क्यों है? I got to know that कि expansion कर रहा है इसलिए debt है. But I am aware of that as well कि company के future perspectives भी हैं because they are having good ROE and good ROC, दोनों अच्छा है, ठीक है. Sales भी उनका grow कर रहा है, उनके पास अच्छा net profit है to pay back the interest part of the debt, right? So ultimately you need to see the weightage. I mean क्या करना चाहिए, ठीक है. तो वो सब देख के आपको इंडिविजुअल डिसीजन लेना पड़ेगा कि बॉस मेरे को अल्टीमेटली कुछ तो क्राइटेरिया आप ऐसे स्टैंडर्ड क्राइटेरिया कैसे बनाएंगे. इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. आई ट्राई टू मेक इट, इवन आई हैव दैट लिस्ट. मैंने एक क्राइटेरिया बना रखा है सम रेटिंग वेटिंग करके कि ये इसका ऐसे होगा तो मैं ये रेटिंग दूंगा, ये रेटिंग दूंगा, और फाइनली इफ द रेटिंग इज 9 और 10 आई विल बाय दैट स्टॉक. मैंने वो बना रखा है, बट मैंने अभी उसको अच्छे से वो नहीं किया है कि भाई जो ऑब्वियसली जो 9-10 में आते हैं वो ठीक है, बट क्यों मैंने जो एक दिया नंबर उसकी वजह से कुछ कुछ इम्पैक्ट क्या आया, किस नंबर की वजह से क्या इम्पैक्ट आया, वो अभी सब कुछ उतना मैंने स्टडी नहीं किया है फ्रैंकली स्पीकिंग विद यू. बट वैसा आप बना सकते हो. यू कैन पुट सम टेक्निकल पार्ट ऑफ दैट एज वेल इन दैट व्हाटएवर क्राइटेरिया यू मेक. ये तो फंडामेंटल क्राइटेरिया है, देन दिस इज द टेक्निकल क्राइटेरिया, ठीक है. सो अगर सब में सही आ रहा है, सब नंबर सही आ रहे हैं, 10 आउट ऑफ 9-10 आ रहा है, तो लेट्स बाय इट, लेट्स प्लेस एन ऑर्डर, राइट. तो श्रीराम जी इसमें सी फंडामेंटल से आपको ये पता चलेगा कौन सी कंपनी खरीदनी है, ओके, राइट, व्हिच कंपनी यू वांट टू बाय, या व्हेन डू यू वांट टू बाय एंड व्हेन यू नीड टू गेट आउट, वो आपको टेक्निकल से पता चलेगा, ओके, मेन, बिकॉज़ what happens, the fundamental parameters are available after 3 months, yeah, और वो 3 महीने में कंपनी का प्राइस ऊपर से नीचे भी हो सकता है. करेक्ट. Okay, so in those cases it's you use fundamental analysis to identify which company you want to buy, all right, and you identify entry price, exit price, stop loss based on the technical analysis. Yeah, good sir. Yeah, thank you so much. Right, nice. I think, and this is one of the best live sessions I have attended, and really thankful to Sharma ji. Thank you very much. Arvind ji, you are the Canstrip administrator. There are a lot of people asking for the link अपने ग्रुप का. So मैं बोल रहा हूँ कि रहने दीजिए. अगर आप किसी को पर्सनली जान रहे हैं उनको ऐड कीजिए, क्योंकि हम लोग काफी ऑलरेडी लोग हैं. आप पर्सनली जानते हैं. चिंतन जी मैं आपको एडमिन बना देता हूं, आप ऐड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अदरवाइज रिड्यूस कीजिए नंबर ऑफ पीपल. आई एग्री पीयूष सर, इसलिए मैंने लिंक नहीं भेजा था, बराबर. बहुत लोग बोल रहे थे. I think it's better to give the Twitter handle because whatever you guys are doing, you can just paste over there and people can follow and they can ask, and according to your time availability you can engage with them, because WhatsApp पे everyone engagement is not possible, I think. Exactly. जो लोग लेट्स लर्न ग्रुप से या ATG ग्रुप से आए हैं, इसमें आपको कुछ भी अगर क्वेश्चन है तो मुझे उस ग्रुप में मैं हूँ, उसमें आप डाल सकते हैं क्वेश्चन. मैं अरविंद जी से भेज दूंगा, दे कैन आंसर इट एंड आई कैन बी द मीडियम. Yes, I can even Arvind ji, even I can. हेलो सर. Yes. अरविंद जी मैं ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ. राइट.